Good morning, students. Good morning, ma'am. Okay, so let's start our today's class. What we have completed yesterday? Fertilization and implantation, then fetal development, then fetal environment, fetal circulation, family planning. Okay, so let's do a quick revision of our previous class. So tell me, what do you mean by fertilization? Fusion of sperm and ova. Yes, fusion of sperm and ova or ovum. That is called as fertilization. Where the fertilization will take place? Yes, at the ampulla in fallopian tube. Then fertilization कितने like ovum की viability कितने days की है? 72 hours. 72 2 hours. hours. Okay. Then chromosomal pairs कितनी होगी? 20. दोनों की मिला के 23 pair. 23 pair. No, 23 chromosomes. Yes, not pair. So ovum will contain 23 number of chromosomes. Sperm will contain 23 number of chromosomes, and combinedly they will form 23 pair of chromosome. That is 46 number of chromosome. If X and Y will fuse, the ovum and sperm combinedly carries X and Y sperm, then it will Male. develop male. Yes, and X and X chromosome female. female. Okay. What is implantation? Attachment. Yes. Online students, what is implantation? Fertile egg become a zygote, an implant in a upper part of uterus, which is Okay. called fundus. Okay. So जो fusion of ovum and sperm है, they combinedly called as zygote now, and वो zygote अभी upper part of the uterus, that is in fundus, वहां पर जाके attach हो जाता है. So the attachment of zygote is called implantation. Okay. Then fetal development. Fetal development में mainly fetus is divided into 3 stages. What are they? Pre-embryonic, embryonic, and fetal. Yes. What is the time period of pre-embryonic stage? First 2 week after conception. Yes, first 2 week after conception. What is the time period for fetal stage? 2 months to 9 months. Yes, 2 months से लेके जब तक बर्थ नहीं हो जाता तब तक का. And what is the time period for embryonic stage? 15 days to 8 weeks. Yes, and 2 weeks to 2 months. वो दोनों याद रख सकते हो आप. So that is embryonic period. फर्स्ट वीक में अभी क्या होगा? जो प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड है, फर्स्ट वीक में क्या होता है? ब्लास्टोसिस अभी फ्रीली फ्लोटिंग है, अभी अटैच नहीं हुआ है. देन वीक 2 to 3 में क्या होगा? ट्यूब्यूलर शेप हार्ट होगा. हाँ, यस. Lung birth appears as a blood circulation begins as a then neural plate become brain and spine. यस, न्यूरल प्लेट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनना स्टार्ट हो जाएगी. देन हार्ट भी अभी बीट करना स्टार्ट कर देगा, बट हार्ट कैसे शेप का होगा? ट्यूब्यूलर, एक ट्यूब जैसा होगा. ब्लड सर्कुलेशन भी स्टार्ट हो जाएगा. वीक 5 में क्या होगा? Double heart chamber. हाँ, ट्यूब में से अभी 2 चैम्बर वाला हार्ट होगा. नाउ इट इज राइट नाउ इट इज नॉट अ 4 चैम्बर हार्ट, इट इज ओनली डबल चैम्बर हार्ट. देन हार्ट इज स्टिल बीटिंग. Heart is beating, yes. यस, एंड लिम्ब बर्ड्स आर फॉर्म. जो हाथ और पैर के लिम्स जो बनने वाले हैं उसके बर्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. कैन यू आइडेंटिफाई द हार्ट बीट यूजिंग अल्ट्रासाउंड, डॉपलर अल्ट्रासाउंड? No. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. तो कब आपको सुनाई देगा? After 8th week. यस, 8 वीक से आप सुन सकते हो. एंड आइडियली अगर 8 वीक नहीं दिया है तो 10 to 12 वीक में कभी भी, मतलब 10 वीक से आप सुन सकते हो. और अगर ऑप्शन में 8 वीक दिया है तो 8 वीक से भी आप सुन सकते हो यूजिंग डॉपलर यूएसजी. देन फीटोस्कोप से आप कब सुन पाओगे? At week 20. Week 20. 20 वीक. यस, यस. देन फीटस कैन हियर द एक्सटर्नल नॉइस. कब से वो सुन सकता है बाहर की चीजें?
यस 24 वीक, हाँ 24 24 से आप जो भी बात करोगे फीटस के साथ वो सुन पाएगा अभी फीटस। ओके देन एलएस रेशियो, व्हाट इज द नॉर्मल एलएस रेशियो आइडियल? 1:2:1. 1.2 raised to 1. नो, 2:1. 2 2 raised to 1 that is ideal, that is fully mature lung. अगर 1.2 raised to 1 है it indicates It's not bad. yes it's not bad. उतने रेशियो से फीटस बाहर के एनवायरनमेंट में चलो उसका बर्थ हो जाता है तो वो भी सरवाइव कर लेगा, बैड नहीं है, बट आइडियल इज 2:1 एंड गुड इज 1.2:1, नॉट 1:2:1. ओके इट इज 1.2:1. ओके देन अगर उसके पहले लाइक 32 वीक्स पर एलएस रेशियो 1.2:1 होता है, अगर उससे पहले फीटस का बर्थ हो जाता है तो वो सरवाइव कर पाएगा? Yes, at birth at 28th week, the fetal will survive. यस 28 वीक पर भी उसका बर्थ होगा तो वो सरवाइव कर पाएगा, नो डाउट. वी हैव टू प्लेस द फीटस फॉर द फोटोथेरापी, उसके लिए हमें रखना पड़ेगा, वार्मर में रखना पड़ेगा, हमें उसको वेंटिलेटर सपोर्ट भी देना पड़ेगा, बट वो सरवाइव कर जाएगा. द लंग्स कैन इनहेल एंड एक्सहेल. अगर उससे पहले बर्थ होगा तो नहीं, देन वो सरवाइव नहीं कर पाएगा. सो ये चीजें याद रखनी है. देन Madam, यस 28 પહેલા મે બી ડિલિવરી થાય તો આપણે સર્ફેક્ટન્ટ આપીને ના એ કરી શકાય. हाँ सर्फेक्टेंट दे सकते हैं हम. सर्फेक्टेंट इसीलिए देते हैं कि लंग मैच्योरिटी हो जाए, बट सर्वाइवेबिलिटी की चांसेस बहुत कम होंगे. अगर वो सर्वाइव कर गया तो दैट इज गुड, बट ज्यादातर वो नहीं कर पाते. ઓકે. एंड जो भी प्रीटर्म बेबीज बॉर्न होते हैं उसको सर्फेक्टेंट दिया ही जाता है. और कैसे देते हैं हम? ઈટી ટ્યુબ થી. यस ईटी ट्यूब से देंगे. और मदर को दे सकते हो आप? યસ. मदर को दे सकते, तो मदर को कैसे दोगे? આઈવી. आईवी से. IVIM इन शॉर्ट मदर को पेरेंट्रल रूट से देना है, और फीटस का बर्थ हो जाता है तब उसको ईटी ट्यूब से, बिकॉज वो अभी सांस नहीं ले पाएगा, सो ऑलरेडी उसको इंट्यूबेट किया हुआ ही होगा, सो आपको ईटी ट्यूब से मतलब ओरल रूट से देना पड़ेगा फीटस को. बट सर्फेक्टेंट हम दे सकते हैं, इट इज गिवन फॉर लंग मैच्योरिटी. सर्फेक्टेंट से लंग मैच्योर होते हैं तो अर्ली बर्थ हो जाता है तो उसको देना पड़ता है, बट डिपेंड करेगा कि वो कैसे सरवाइव करेगा. अगर 28 वीक से पहले उसका बर्थ होता है तो सर्वाइवेबिलिटी के चांसेस बहुत कम होंगे. देन एट वीक 12 पर क्या आपको देखने को मिलेंगे चेंजेस फीटस में? यस Kidney will develop. हाँ किडनी अच्छे से डेवलप भी हो जाएगी और फंक्शन करना भी स्टार्ट कर देगी. सो यूरिन फॉर्म करना स्टार्ट कर देगी किडनी. Sucking reflex and spontaneous. स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स होंगे, सकिंग रिफ्लेक्स होगा, एंड हार्ट बीट कैन बी डिटेक्टेड बाय डॉपलर ट्रांसड्यूसर. वीक 16 पर क्या होगा? हाँ We पहले identify the sex of fetus. यस दैट इज इम्पोर्टेंट. यस ये याद रखना है. आप सेक्स कब आइडेंटिफाई कर सकते हो? एट वीक 16. उससे पहले आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? No. नो इट इज नॉट पॉसिबल. सो वीक 16 पर आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वेदर द फीटस इज मेल और फीमेल, बट स्टिल इट इज प्रोहिबिटेड. बट डॉक्टर को पता चल जाएगा. आपने ओबीजी पोस्टिंग में लाइक जब कॉलेज में थे ओबीजी की पोस्टिंग थी तब आपने ये यूएसजी करवाने जो आते थे कपल्स, आपने उनकी यूएसजी देखी है? उसमें आपने डॉक्टर ने आपको बताया था कि मेल कैसे पता चलेगा फीमेल कैसे पता चलेगा? की है कभी देखा है? યુએસજી જોઈ છે પણ એવું ડોક્ટરે નહીં સમજાયું કે આ મેલ છે. ओके सो नॉर्मली डॉक्टर को पता चल जाता है कि वो मेल है या फीमेल है, बट डॉक्टर कैन नॉट डिक्लेयर दीज थिंग्स टू पेशेंट. पेशेंट को नहीं बता सकते. एंड वो आपको भी बताएंगे अगर परपेंडिकुलर लाइन होती है सो इट इज मेल, एंड अगर स्ट्रेट लाइन होगी सो दैट इज फीमेल. वो यूएसजी में से ही पता चलेगा. यू कैन ऑल्सो गूगल इट. गूगल से भी आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो कि हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रॉम यूएसजी दैट अ फीटस इज मेल और फीमेल. तो आपको वो गूगल में भी बताएंगे कि क्या
डिफरेंस होता है। नॉर्मली शायद अभी कभी और मौका मिले तो एक बार ट्राई करना, डॉक्टर आपको सिखाएंगे कि कैसा होता है। स्टूडेंट लाइफ में ये क्वेश्चन करने से वो बताते हैं कि क्या होता है, सो इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। देन તો दूसरा ફોરેન નું મેડમ આ પ્રોહિબિટેડ નથી ને સેક્સ ડિટર્મિનેશન? नो, इट इज नॉट प्रोहिबिटेड। देन दूसरा क्या होगा? Lanugo hair will develop. हाँ, लेन्यूगो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन एमनियोटिक फ्लूइड स्वेलो कर सकता है नाउ फीटस, Yes. वो अभी नहीं हो। फिंगरप्रिंट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, यस। फीटस की स्किन कैसी होगी? ટ્રાન્સપરન્ટ एक्टिव ट्रांसपेरेंट मूवमेंट हो गया। आपको Wait, दिखेगा, अंदर की वेन्स और वो सब दिखेगा, ट्रांसपेरेंट स्किन होगी। वीक 20 पर क्या होगा? माइलिनेशन नर्व्स का बनना स्टार्ट हो जाएगा, माइलिन शीथ बनना स्टार्ट हो जाएगी। हार्ट बीट आप फीटोस्कोप से सुन पाओगे। देन नेल्स ग्रो हो नेल्स, गए। हाँ नेल्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, मसल्स डेवलप होंगे, टीथ में इनेमल और डेंटिन का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। बट वो टीथ इरप्ट अभी नहीं होंगे, बट वो जो टीथ बनने स्टार्ट हो जाते हैं जॉ के अंदर, गम्स के अंदर होते हैं, जो बेबी बॉर्न होता है उसके टीथ ऑलरेडी उसके पास होते हैं, इरप्ट होना लेट स्टार्ट होते हैं, तो वो डेंटिन और इनेमल डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड पूरी बॉडी पर लेन्यूगो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरी बॉडी कवर हो जाएगी लेन्यूगो से। ओके, वीक 24 पर फीटल कैन हियर द वॉइस। हाँ, वर्निक्स केसियोजा होगा बॉडी पर, फीटन कैन हियर द एक्सटर्नल साउंड, यस। तो हेयर ऑफ द हेड इज वेल फॉर्म। अभी फीटस के हेड पर हेयर दिखेंगे आपको, पहले उसके हेड पर हेयर नहीं थे। देन स्किन अभी भी कैसी होगी? रेडिश कलर की और रिंकल्ड होगी। देन सरफेक्टेंट, सर्फेक्टेंट लेवल इंक्रीजेस। अभी सरफेक्टेंट लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट होंगे। नाउ द फीटल लंग्स विल स्टार्ट टू बिकम अ मैच्योर। फीटल के लंग अभी तक मैच्योर होना स्टार्ट ही नहीं हुए थे। नो डाउट लंग्स से लंग्स बर्ड्स भी थे, बट सरफेक्टेंट अब डेवलप होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। जैसे सरफेक्टेंट इंक्रीज होगा लंग्स मैच्योर होते जाएंगे। और हमें कैसे पता चलेगा कि फीटस के लंग्स मैच्योर है या नहीं? सो एलएस रेशियो से हमें पता चलता है। वीक 28 में क्या होगा? लिम्स कैसे होंगे? अब फीटस कंप्लीटली फ्लेक्स पोजिशन में होगा, बिकॉज कंप्लीटली ग्रो हो गया है ना, उसका डेवलपमेंट ही होगा। सो पूरा फ्लेक्स हो गए सारे लिम्स। देन eyelid open and close। यस, आईलिड्स ओपन एंड क्लोज हो सकते हैं। देन लंग्स डेवलप हो गए हैं सफिशिएंटली कि अगर वो उसका बर्थ हो जाता है तो एटलीस्ट गैस एक्सचेंज वो कर पाएंगे, इनहेल एंड एक्सहेल कर पाएंगे। देन ब्रेन उसका अभी रैपिडली डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट वीक 32 पर क्या होगा? बोन्स यस, फुल्ली डेवलप हो गए, सबक्यूटेनियस बोन्स फुली फैट कलर हो गए। raised to 2. और wrinkle कम हो जाएंगे, यस। देन
ओके, सो लास्ट आपने क्या सुना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम। Yes, हाँ, ma'am. हमने क्या डिस्कस किया? लास्ट वीक 32 तक सुनाई दिया। हाँ, सो वीक 32 में स्किन कैसी होगी? अभी रिंकल्स कम हो जाएंगे, स्किन कलर पिंक होगा, बॉडी एकदम राउंड हो जाएगी, और एलएस रेशियो क्या होगा अभी? मोर देन 2:1, नॉट 1.2. 32 वीक्स 1.2 का raised. No, 1.2 raised to 1 at 32. at 32 week, yes, but right now I'm talking about 36 weeks. तो 36 weeks में स्किन रिंकल होगी, स्किन पिंक होगी, बॉडी राउंड होगी, लेन्यूगो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड एलएस रेशियो 2:1 से अभी ज्यादा होगा. 2:1 इज द आइडियल, उससे भी अभी ज्यादा होगा. उसका मतलब लंग्स आर कंसिडर्ड एज फुल्ली मैच्योर. वीक 40 पर क्या चेंजेस होंगे? रिंकल्स एकदम चले जाएंगे, स्किन एकदम पिंकिश स्मूथ होगी. हाँ, पिंक और स्मूथ होगी. देन लेन्यूगो, मे बी प्रेजेंट और नॉट. हाँ, मे बी प्रेजेंट और नॉट. और अगर प्रेजेंट होंगे तो कहाँ पर होंगे? आर्म्स एंड शोल्डर. और आर्म्स एंड शोल्डर्स पीछे की तरफ होंगे. वर्निक्स केसियोसा कैसा होगा? धीरे धीरे डिक्रीज होगा. होना स्टार्ट. हाँ, देन फिंगर नेल्स इतने ग्रो हो गए हैं कि फिंगर्स के भी बाहर आ गए, बहुत बड़े बड़े नेल्स हो गए हैं. फिर क्रीसिस कैसी होगी? पैर की क्रीसिस 1/3, मतलब पूरा लेग कवर कर देगी, थोड़ा ही बाकी रहेगा, एंड धीरे धीरे वो 41 वीक तक पूरा लेग कवर हो जाता है. देन टेस्ट, अगर मेल है तो टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड हो जाएगी. हाँ. यस, एंड अगर फीमेल है तो लेबिया मेजोरा वेल डेवलप हो जाएगा, फुल्ली डेवलप होगा. यस, सो दिस इज अबाउट फीटल डेवलपमेंट. देन हमने फीटल एनवायरनमेंट देखा था, उसमें क्या होगा फीटस के आसपास? यस, एमनियन, कोरियन, एमनियोटिक फ्लूइड एंड प्लेसेंटा. एमनियन क्या है? ओके, जो एमनियोटिक कैविटी है, पूरी सैक है, सो उसको जो कवर करता है दैट इज एमनियन. इट इज द इनर मेम्ब्रेन, जो अंदर की मेम्ब्रेन है, दैट इज एमनियन. फिर कोरियन क्या है? आउटर मेम्ब्रेन. आउटर लेयर, जो पूरी एमनियोटिक कैविटी है, एमनियोटिक सैक है, उसको एमनियन कवर करता है, और उसको भी कोरियन कवर करेगा. सो इट इज द आउटर मेम्ब्रेन जो पूरी एमनियोटिक कैविटी को, एमनियोटिक सैक को कवर करता है. एंड कोरियन में से क्या बनेगा? प्लेसेंटा. प्लस प्लेसेंटा कोरियन में से बनता है. कोरियन में वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट होता है और उसमें से प्लेसेंटा बनता है. देन नेक्स्ट इज एमनियोटिक फ्लूइड. नॉर्मल कितना होगा? 800 to 1200. If it increases, then पॉलीहाइड्रोमिनस. हाँ, it is called as polyhydramnios. And अगर कम हो जाएगा तो oligohydramnios. Yes. उसका फंक्शन क्या है एमनियोटिक फ्लूइड का? बेबी को सराउंड करेगा, कुशन देगा कि बाहर के जर्क उसको ना मिल सके, उसको प्रोटेक्ट करेगा, एंड फीटस मूवमेंट अच्छे से हो पाए, इसके लिए भी वो स्पेस अलाउ करता है. बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है. एंड आपको एक चीज पता चल सकती है फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड. व्हाट? कैसे? Kidney कैसे? function. हाँ, बिकॉज वो एमनियोटिक फ्लूइड कौन रेगुलेट करता है, मॉडिफाई करता है? फीटस खुद करता है. कैसे करता है? by swallowing and Swallowing and urination. बाय swallowing and by urinating. सो उससे पता चलेगा कि वो फीटस का किडनी फंक्शन कैसा है. अगर देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि फीटस को स्वेलोइंग डिफिकल्टी है. फॉर एग्जांपल हमने वी विल स्टडी दिस इन पीडियाट्रिक, आपको पता हो तो. इसोफेजियल अट्रेसिया, व्हाट इज दैट? इसोफेजियल अट्रेसिया पीडियाट्रिक कंडीशन है, पता है, याद होगा, 3rd ईयर का शायद. इसोफेगस कंप्लीटली फॉर्म नहीं है, आधा ही है, तो वो फीटस स्वेलो कर पाएगा एमनियोटिक फ्लूइड? अगर उसको कंजेनाइटल ये प्रॉब्लम है तो वो स्वेलो नहीं कर पाएगा और एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ता रहेगा.
सो ऐसे कोई प्रॉब्लम है, या फिर फीटस अच्छे से स्वेलो कर रहा है बट उसकी किडनी में अच्छा फंक्शन नहीं है, तो यूरिन नहीं बन रहा है, सो सिर्फ स्वेलो ही करे जा रहा है, बन नहीं रहा है, सो ऐसे कंडीशंस में आप ये एमनियोटिक फ्लूइड टेस्टिंग कर सकते हो और पता चल सकता है कि उसमें किडनी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। देन नेक्स्ट इज प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या करेगा? फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, it will provide nutrition, nutrients and oxygenated blood, and it will exchange the waste products and deoxygenated blood, वो fetus से mother तक ले जाएगा and nutrients and oxygenated blood fetus तक लाएगा। प्लासेंटा कब बनेगा? हाँ, 3 महीने में प्लासेंटा फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। तो तब तक उसका फंक्शन कौन कर रहा था? कैसे कर रहा था? by estrogen and progesterone. Estrogen. हाँ, बट कॉर्पस ल्यूटियम को भी वायबल कौन रख रहा था? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कॉर्पस ल्यूटियम भी कैसे वायबल रह रहा था? L. FSH. ब्लास्टोसिस्ट, यस, ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा? HCG रिलीज करेगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। उसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल था, वायबल था, डीजनरेट नहीं हो रहा था, और वो कंटिन्यूअसली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करे जा रहा था। जब प्लासेंटा बन जाएगा एट 3 मंथ्स, तो फिर प्लासेंटा क्या करेगा? पूरा फंक्शन टेक ओवर कर लेगा ना, वो सिक्रीट करेगा एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स फॉर द सर्वाइवेबिलिटी, एंड वो कॉर्पस ल्यूटियम, नाउ द कॉर्पस ल्यूटियम कैन डीजनरेट, बट तब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओवरीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ओके, देन व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? Antibiotics and bacteria. So nutrients, medications, alcohol, antibiotics, bacteria, certain viruses and drugs, ये सब चीजें प्लासेंटा से क्रॉस होकर फीटस तक जा सकती है एंड फीटस को हार्म कर सकती है। नाउ एक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो आप कर सकते हो कौन से टाइम पर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, At 10 to 12 week. कौन सा टेस्ट कर सकते हो आप? Organic villus sample. क्यों करते हो ये टेस्ट? Prenatal detect. हाँ, कोरियोनिक वीलस सैंपलिंग, सीवीएस डायग्नोस्टिक टेस्ट आप 10 से 12 वीक में कर सकते हो, बिकॉज तब तक प्लासेंटा अच्छे से बन गया है। सो वहां से आप सैंपल लेके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फीटस में कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है या नहीं। सो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, जेनेटिक टेस्टिंग करने के लिए आप ये टेस्ट करते हो। देन नेक्स्ट हमने फीटल सर्कुलेशन देखा था। सो द पार्ट्स आर अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होगा? 2 arteries and 1 vein. 2 arteries and 1 vein। उसका काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस तक ले जाना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स मदर तक ले जाना। व्हाट इज द नॉर्मल FHR? Depends on gestation age. इट डिपेंड्स ऑन जेस्टेशन एज, बट आपको नॉर्मल FHR पूछे तो 160 to 170 नहीं बोलनी है, बिकॉज इट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर FHR, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उतनी होती है। बट अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉर्मल FHR, आपको 110 to 160 याद रखनी है। जेस्टेशन एज जैसे जैसे इंक्रीज होगी, FHR कैसा होगा? डिक्रीज होता है, कम होगा। सो इनिशियली फर्स्ट 3 मंथ्स 160 to 170 होता है, देन 110 to 160 होगा नॉर्मल FHR। आप दूसरी तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है। सो व्हाट इज दैट अनदर मेथड? मदर की जो भी हार्ट रेट है मल्टीप्लाई बाय 2, दैट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ फीटस। फीटल सर्कुलेशन बाईपास कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे बाईपास के? Ductus venous, foramen, all ductus arteries. Ductus arteriosus, ductus venosus and foramen oval. What is ductus arteriosus? क्या है वो? कहाँ पर जंक्शन होता है? क्या बाईपास होता है? What is that? Aorta to pulmonary artery. Connection था इन्हें ductus arteriosus. हाँ, it is the connection between pulmonary artery and aorta, और वो lungs bypass करता है। What is ductus venosus? Connection superior vena and umbilical vein.
and bypass lever. Yes. So it is a connection between umbilical vein, जो vein है उसमें, और inferior vena cava, वो दोनों के बीच में connection है और लीवर को bypass करता है. What is foramen oval? Between right atrium and left Opening atrium. between right and left ventricle. Yes, opening between the atria. और क्या bypass करेगा? Lung. लंग्स को bypass करेगा. Yes. तो हमने ये fetal circulation पढ़ा था. fetus में कौन सा blood flow होता है? मिक्स ब्लड फ्लो. यस, बिकॉज उसमें जो ओपनिंग एंड कनेक्शन है उसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाता है. सो फीटस में मिक्स ब्लड फ्लो सर्कुलेट होता है. एंड ये सारे जो ओपनिंग्स है, जो बाईपास है, वो एट बर्थ क्लोज हो जाने चाहिए. धीरे धीरे वो क्लोज हो जाने चाहिए. अगर नहीं होंगे सो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो नॉर्मली वो क्लोज हो जाना चाहिए. ओके, देन हमने फैमिली प्लानिंग देखा था. व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली प्लानिंग? Yes. Online students, what is family planning? When to avoid the pregnancy? Online student, what is family planning? When couple want to get pregnant and don't want to get pregnant. Yes. When they want to get pregnant, combinedly, both things are called as family planning. उसमें हमने birth control methods के बारे में स्टडी किया था. तो क्या ध्यान में रखना है आपको being a nurse? आपके पास कोई कपल आया है, उनको कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है, बर्थ कंट्रोल यूज करना है. सो बीइंग अ नर्स आप क्या करोगे? We have to explain all things, but important is personal preference of that. यस, हमें सारी चीजें आप एक्सप्लेन करनी होगी. हमें उनका प्रेफरेंस खास देखना है. सारी बर्थ कंट्रोल मेथड्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप बता सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर. हमने पीछे देखा था कि लेस इन्वॉल्व, सो क्या है, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो बट चॉइस उनकी रहेगी. सो यू हैव टू मेक श्योर. दोनों कपल की लाइक फीलिंग्स आपको ध्यान में रखनी है, बट मोस्ट आपको किस पर ज्यादा फोकस करना है? किसकी प्रेफरेंस पर? फीमेल. Woman. यस, वीमेन की प्रेफरेंस पर ज्यादा फोकस करना है. तो यू कैन नॉट फोर्स देम कि ये लेना है वो लेना है, ऐसा फोर्स नहीं कर सकते. दूसरे और फैक्टर्स है लाइक उनका फैमिली प्लानिंग गोल क्या है, व्हाट इज देयर एज. छोटी एज में वो स्टेरिलाइजेशन नहीं करवा सकते. सो व्हाट इज देयर एज, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स कैसा है, उसके रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, उसकी पर्सनल बिलीफ्स क्या है. सो उस पर भी कॉन्ट्रासेप्शन सिलेक्शन डिपेंड करेगा. देन अगर फैमिली प्लानिंग गोल्स मेट हो गए हैं तो क्या आप सजेस्ट कर सकते हो उनको? Sterilization. स्टेरिलाइजेशन. बट उनको ये मेक श्योर करना है कि उनको ये पता हो. क्या पता हो? वही से रिकंस्ट्रक्शन ना सही सके. रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता. एक बार स्टेरिलाइजेशन कर दिया मतलब यू आर परमानेंटली स्टेरिलाइज. वो रिकंस्ट्रक्शन करना दैट इज नॉट पॉसिबल. एंड अगर कोई कपल ऐसा है कि वो फ्रीक्वेंटली सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज रहता है तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट कर सकते हो? IUD. Oral contraceptive. आईयूडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. एंड ये सारी चीज आप उनको बोल सकते हो. अगर कोई कपल ऐसा है कि वो लेस फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व है सेक्सुअल एक्टिविटी में तो Spermicides, diaphragm. यस, स्पर्मिसाइड जेल्स, कॉन्डम्स, डायफ्राम, ये सब आप उनको बोल सकते हो. अगर कोई ऐसी मेथड है लाइक आईयूडीज होता है या फिर कुछ ऐसे इन्वेजिव मेथड्स है जो यूज करने के लिए है तो जिसके एडवर्स इफेक्ट ज्यादा होते हैं तो उनकी इन्फॉर्म कंसेंट आपको लेनी होगी. बिकॉज आपने उसको समझाया था कि ये सब होता है फिर भी उन्होंने ये डिसीजन लिया है. सो बाद में कपल आके ऐसा ना बोल दे कि आपने हमको जबरदस्ती ये वाला करवा दिया और हमें प्रॉब्लम हो गया. सो ऐसी जो चीजें होती है, ऐसी जो मेथड्स होती है जिसमें एडवर्स इफेक्ट ज्यादा है, सो उसमें कंसेंट ले लेनी है फॉर आवर सेफ्टी. देन वी हैव स्टडीड इनफर्टिलिटी. व्हाट इज दैट? Inability to conceive the episode. इन फर्स्ट अटेम्प्ट No. 1 year, only 1 year. 1 year तक yes they were trying to conceive without using contraceptive methods. Still they are not able to conceive, then it is called as infertility. Types of infertility: Primary. primary and secondary. What is primary infertility? જેને એક બી વાર conceive નથી કર્યું એ. फर्स्ट चाइल्ड भी नहीं है, फर्स्ट टाइम भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे. एंड व्हाट इज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी? फर्स्ट वक्त कंसीव થઈ ગયું पर सेकंड टाइम तक. यस, फर्स्ट चाइल्ड है बट सेकेंड टाइम वो कंसीव नहीं कर पा रहे.
तो अगर फर्टिलिटी अगर फीमेल में और मेल में क्या रीजंस हो सकते हैं? अगर मेल में इनफर्टिलिटी है तो इट वुड बी ड्यू टू sperm abnormality, then Abnormal ejaculation, erection. यस, स्पर्म एबनॉर्मलिटीज, इरेक्शन एबनॉर्मलिटी, इजैकुलेशन एबनॉर्मल है, या फिर सेमिनल फ्लूइड एबनॉर्मल है। फीमेल में क्यों हो सकता है? सो ओव्यूलेशन का डिसऑर्डर हो, ओव्यूलेशन अच्छे से टाइम टू टाइम नहीं हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब्स और सर्विक्स में कुछ एबनॉर्मलिटी है, या फिर प्रीवियस कुछ स्कार रह गया है ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू सर्जरी, एनीथिंग। सो दिस कुड बी रीजन। सो सेवरल डायग्नोस्टिक टेस्ट आर देयर कि हम डायग्नोस कर सकते हैं कि क्या रीजन है, कौन से मेल या फीमेल में किस में इनफर्टिलिटी है, क्यों है, और अकॉर्डिंग टू दैट वो जो कॉज है हम ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं। सो व्हाट आर द ऑप्शंस? क्या ऑप्शंस है? अगर फीमेल में ओव्यूलेशन डिसऑर्डर है सो दैट इज ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, तो आप क्या सजेस्ट कर सकते हो? मेडिकेशन। यस, हार्मोनल थेरेपी, दैट इज मेडिकेशन। देन कुछ और Surgical प्रॉब्लम है? procedure, यस, सर्जिकल प्रोसीजर। देन artificial insemination. artificial insemination, what is that? हाँ, that is, but that is an option. So क्या कर सकते हो? artificial insemination means artificially एक्सटर्नल, बाहर से हम स्पर्म अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं फीमेल के अंदर, सो इट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देन और क्या कर सकते हो आप? मैम ये तो मेल માટે ના હોય आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दैट इज फॉर मेल। मेडिकेशन का मैंने सिर्फ फीमेल के लिए पूछा था। सर्जिकल प्रोसीजर मेल और फीमेल दोनों के लिए होगी, कुछ प्रॉब्लम होगा तो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दैट इज अगर मेल इनफर्टाइल है, बट दिस आर द ऑप्शंस। मैंने फीमेल का सिर्फ मेडिकेशन के रेफरेंस में पूछा था। ओके, ओके, देन अदर ऑप्शंस आर Surrogate, सरोगेसी, यस, देन embryo host, embryo host, yes, Then IVF. IVF, हाँ। सो IVF, सरोगेसी एंड एम्ब्रियो होस्ट भी हो सकता है। अगर ये सारी चीजें नहीं करनी है तो लास्ट ऑप्शन इज adoption. Adoption. यस, अडॉप्ट भी कर सकते हैं। सो एज अ नर्स हमारी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी क्या है? Decision making मैंने help करवाना. हाँ, जो भी कपल है जो इनफर्टाइल है, इनफर्टिलिटी से गुजर रहा है, सो वी हैव टू गिव सपोर्ट, हमें उनको सपोर्ट देना होगा। एंड अगर डिसीजन मेकिंग की क्या करना चाहिए क्या नहीं, सो उसमें हेल्प करनी है। एंड उनको थेरापी, जब वो थेरापी रिसीव कर रहे हैं तब भी आपको सपोर्ट देना है। सो दिस इज द रोल ऑफ नर्स। एनी डाउट इन दिस चैप्टर? नो मैम। No. ओके, आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। So next chapter is chapter 22, that is prenatal period. What do you mean by prenatal period? किसके? बिफोर बर्थ पीरियड चाले है। नेटल का मतलब है डिलीवरी। सो डिलीवरी के पहले का जो भी पीरियड है दैट इज प्रीनेटल पीरियड। सो ये चैप्टर में हम पूरी प्रेगनेंसी रिलेटेड स्टडी करेंगे, बर्थ से पहले, डिलीवरी से पहले तक का पूरा जो भी पीरियड है वो हमें स्टडी करना है। व्हाट आर द प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट? अगर ये चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं तो आपको किस पर फोकस करना है? डेवलपमेंट पर एंड रिप्रोडक्शन पर। सो दिस आर द प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज जेस्टेशन। जेस्टेशन का मतलब क्या है? Yes. What is gestation, online students? फर्टिलाइजेशन से लेके, हाँ, जब तक वो बेबी डिलीवर नहीं हो जाता तब तक का जो प्रेगनेंसी पीरियड है, हम उसको साइंटिफिकली हमारी गायनेकोलॉजी की लैंग्वेज में जेस्टेशन बोलते हैं। जेस्टेशनल पीरियड और जेस्टेशन। सो कितने दिन का होता है? 280 डेज का होता है, रफली डेज है 280 डेज। देन अनदर थिंग इज Another thing is Nagel's
नेगलस रूल फॉर एस्टिमेटिंग द डेट ऑफ डिलीवरी ऑल्सो नोन एज डेट ऑफ बर्थ। यस, हम जब कॉलेज में थे तब हम ऐसे ईडीडी काउंट करते थे, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। सो ईडीडी, सो वो किसने दिया था? सो नेगलस था, दैट इज द साइंटिस्ट, उसने दिया था कि कैसे आप एस्टिमेट कर सकते हो। सो लेट्स सी बॉक्स 22.1। कोई मुझे बताएगा कि कैसे काउंट कर सकते हैं हम ईडीडी? हम EDD के अंदर 9 month and 7 days LMP add में 7 days. ओके, सो मैं आपको आपको पता है कि कैसे काउंट कर सकते हैं। सो मैं एक आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। एक फीमेल है, उसका LMP था, फॉर एग्जांपल अभी मार्च है ना, सो लेट्स से 2 फेब को उसका पीरियड स्टार्ट हुआ था एंड 7 फेब उसका पीरियड एंड हुआ था। सो व्हाट वुड बी द ईडीडी? चलो, है 2024 है, 25। 9th December. ओके, 9 दिसंबर 9 20। November. ओके, 9th 9 नवंबर दिसंबर। November. 9 14। November. ओके, चलो 9 और November 2000. Ma'am, November. Sorry, ma'am, November. ओके, नवंबर 2020. और 25, सॉरी 24 है। 9th नवंबर मैम। ओके, सब लोगों का 9 नवंबर है। 16 नवंबर। 16 नवंबर। ओके ओके, सो ईडीडी के लाइक क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। सो ये आपको पता होना चाहिए कैसे काउंट करना है। लेट मी टेल यू, अगर आपको एलएमपी दिया है क्वेश्चन में कि मेंस्ट्रुएशन इस डेट से स्टार्ट हुआ था एंड इस डेट को खत्म हुआ था, सो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन आपको कैलकुलेट करना है, नॉट द लास्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में ये बोला है कि फीमेल का एलएमपी वाज 4 फेब, सो डायरेक्टली वो ही कंसिडर करना है। बट ऐसा बोला है कि इस डेट पर पीरियड स्टार्ट हुए थे एंड इस डेट को खत्म हुए, तो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। अंडरस्टूड? कैसे करोगे? सो फर्स्ट डेट जो भी है 22 फेब, उसमें 9 मंथ्स आपको ऐड करने हैं। 9 मंथ्स ऐड करने के बाद क्या होगा? फेब्रुआरी, सो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर। सो 9th 2 नवंबर हुआ, उसमें 7 डेज आपको ऐड करने हैं। सो 2 + 7 इज इक्वल्स टू 9। सो 9 नवंबर 2025। अगर लाइक मार्च होता तो ईयर चेंज हो जाता, 2025 की जगह 2026 आता। मार्च के बाद आप कैलकुलेट करते, सो दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी स्टार्ट हो जाता। सो ये ईयर का भी ध्यान रखना है, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होगा कि कंफ्यूज करने के लिए ऐसा होगा 9 नवंबर 2024 एंड 2025। सो ईयर का भी ध्यान रखना है कि कौन सा ईयर का है। सो ऐसे माइनर चेंजेस वाले भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, डेट में भी चेंज वेरिएशन हो सकते हैं, 9th 14th। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये स्ट्रिक्टली याद रखना है, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। सो एलएमपी का फर्स्ट डे आपको ध्यान रखना है, वहां से 9 मंथ्स ऐड करने हैं, देन उसके बाद लास्ट में 7 डेज उसमें ऐड कर देने हैं। ईयर का ध्यान रखना है कि ईयर अगर इनिशियली लाइक फेब्रुअरी में होगा तो ईयर सेम रहेगा, स्टार्टिंग में होगा, बीच में से अगर कंसीव किया है तो ईयर चेंज हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पर दूसरी मेथड बताई है कि फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी दैट इज 12 सितंबर 2023। सो उसमें से 3 मंथ्स माइनस कर दिए। सो रिवर्स क्या है, 9 मंथ्स ऐड करने की बजाय 3 मंथ्स माइनस कर दोगे तो अगेन 9 मंथ्स का मंथ आ जाएगा। सो मंथ इज 12 जून, उसमें 7 डेज ऐड कर दिए, सो 19 जून। अगर ईयर में चेंजेस होंगे, सो जून सितंबर था, सो ईयर ऑलवेज चेंज हो जाएगा, सो 2024। सो एस्टिमेटेड डेट इज दिस। बट ये मेथड बहुत इजी है कि आप कैरी फॉरवर्ड कर लो, जो फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी है वहां पर 9 मंथ्स ऐड करने हैं, देन लास्ट में 7 डेज ऐड करने हैं। ये मेथड याद रखनी है। अंडरस्टूड?
आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में LMP के, दिस आर सो इजी क्वेश्चन, सो अगर इजी होगा तो ये आ जाएगा. सो એટલે મેમ કે હા જ્યારે મેન્સ્ટ્રુએશન સ્ટાર્ટ થયું એ ડેટ લેવાની લાસ્ટ Yes. વાળી मैम अगेन एक्सप्लेन करो ना. हाँ ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन. आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि कोई फीमेल है, उसके मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हुए थे 2 फेब को एंड खत्म हुआ 7 फेब को. सो आपको क्या कंसीडर करना है कि 2 फेब से आपको कैलकुलेट करना है, ना कि 7 फेब. जो फर्स्ट डे ऑफ LMP है वो हमें ध्यान में रखना है. फीमेल्स आपके पास आई, चलो फीमेल का लास्ट LMP था 2 फेब से लेके 7 फेब तक. वो प्रेग्नेंट हो गई, उसको पता भी नहीं चला, अप्रैल में आपके पास आई कि मुझे अभी तक मेरे मेंसेस नहीं आए. तो आपने उसको पूछा कि आपकी LMP क्या थी. सो उसने बोला कि मैं 2 फेब को हुई थी पीरियड्स पर एंड वो खत्म हुए 7 फेब को. सो आपको 2 फेब से कैलकुलेट करना है और देखना है कि अभी वो कितने मंथ प्रेग्नेंट है. सो वहां से ही आपको कैलकुलेट करना है. सो उसकी EDD क्या निकालोगे आप. सो 2 फेब जो फर्स्ट डे ऑफ LMP है उसमें 9 मंथ्स आपको ऐड करने हैं. 9 मंथ्स ऐड करने के बाद वो नवंबर हो जाएगा. सो इट इज इक्वल्स टू 2 नवंबर 2025. उसमें भी 7 डेज आपको ऐड करने होंगे. सो दैट इज 9 नवंबर 2025. अंडरस्टूड. Yes. हाँ. सो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों पूछ सकते हैं कि पीरियड उसके इस डेट पर स्टार्ट हुए थे देन इस डेट पर. तो ध्यान रखना है कि लास्ट वाली डेट नहीं, फर्स्ट डे ऑफ LMP ध्यान में रखनी है. एंड समटाइम्स डायरेक्टली ऐसा, इसमें कैसा लिखा है कि द LMP वाज 12th. सो डायरेक्टली ऐसा लिख दिया हो कि द LMP वाज 4th, तो आपको वो ही कैलकुलेट करनी है. बिकॉज 2 डेट्स दी ही नहीं है, सिर्फ एक ही डेट दी है, तो वो ही कैलकुलेट करनी है. बट आपको जब 2 डेट्स दी गई हो LMP की, तो कौन सी डेट आप किस सिलेक्ट करोगे. फर्स्ट डे से फर्स्ट डे, यस, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ था. सो वो डे कैलकुलेट करना है. अंडरस्टूड. yes. हाँ. सो ये आना चाहिए. दिस इज सो बेसिक, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे. सो इट इज इजीली स्कोरिंग क्वेश्चंस, आप इजीली स्कोर कर सकते हो. तो ये आपको याद रहना चाहिए. Okay. Use of Naegele's rule requires that the person have a regular 28-day menstrual cycle. ये EDD कब इफेक्टिव होगी. आपने कभी कभार देखा होगा कि कुछ फीमेल्स में EDD जो निकलते हैं वो एक्यूरेट 1 या 2 दिन के आगे पीछे ही डिलीवरी होती है. कुछ फीमेल्स में EDD के आगे पीछे नहीं होती. तो ये इफेक्टिव कब रहेगी कि कोई फीमेल ऐसी है कि जिसकी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज तक, तो उसमें ये रूल कंप्लीटली इफेक्टिव होगा. बाकी हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि हाँ इतना हो सकता है, 9 मंथ्स की EDD निकाल सकते हैं सारी फीमेल्स में. सो द मेथड इज सब्ट्रैक्ट 3 मंथ्स एंड ऐड 7 मंथ्स टू द फर्स्ट डे ऑफ LMP एंड देन 1 ईयर इफ अप्रोप्रिएट. जो भी ईयर है वो चेंज करना है. अनदर मेथड इज ऑल्टरनेटिवली add 7 days to the first day of LMP and then count forward 9 months. जो हम यूज करते हैं कि जो LMP है उसमें पहले 7 days ऐड कर दिए देन 9 मंथ्स किए, या फिर पहले 9 मंथ्स ऐड कर दो देन 7 days करो. बट बोथ मेथड्स आर करेक्ट. आपको जो भी इजी लगे, आई थिंक जो मैंने बोला दैट वाज सो इजी. सो आप ये कर सकते हो. ओके. नेक्स्ट इज ग्रेविडिटी एंड पैरिटी. ओके, व्हाट इज ग्रेविडा एंड ग्रेविडिटी का मतलब क्या है. ओके. कितनी बार मदर प्रेग्नेंट हुई है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविडिटी. सो व्हाट इज पैरिटी और पारा. જેને 28 વીક ક્રોસ કરીને પારામાં આવે. ओके, अनदर थिंग. पारा मीन्स पैरिटी मतलब कितनी डिलीवरी हुई है आफ्टर 20 वीक्स. 20 वीक से पहले अगर डिलीवर कर दिया जाए बच्चे को तो उसको क्या बोलेंगे. अबॉर्शन बोलते हैं. यस, 20 वीक से अगर पहले आप डिलीवर करवा देते हो बच्चे को, सो इट इज कॉल्ड एज अबॉर्शन. सो उसमें पैरिटी हम कंसीडर नहीं करेंगे, इट इज कंसीडर एज अबॉर्शन. सो पैरिटी क्या है, पारा क्या है कि 20 वीक्स कंप्लीट होने के बाद नेचुरली अगर 24 है तो भी चलेगा, फ्रीडम है. बट 20 वीक्स कंप्लीट होने के बाद कितनी डिलीवरी हुई है फीमेल की, दैट इज पैरिटी. सो लेट्स स्टडी कि व्हाट इज ग्रेविडिटी. So gravidity, so gravida refers to a pregnant person. Gravida मतलब pregnancy. So gravidity refers to the number of pregnancy. हम ऐसा लिखते हैं ना G1,
G2, सो उससे पता चलता है कि ये कितनी बार कंसीव किया है। G2 मतलब ये सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी है, G1 मतलब ये फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है। सो अ नली ग्रेविडा मतलब क्या, द पर्सन हु हैज नेवर बीन प्रेग्नेंट। ऐसा आपको क्वेश्चंस में लिखा जाएगा कि अ नली ग्रेविडा केम टू योर हॉस्पिटल, तो आपको समझना है कि वो अभी राइट नाउ भी शी इज नॉट प्रेग्नेंट, वो अभी तक लाइफ में कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं है। सो दैट is called as early gravida. A primary gravida मतलब the person who is pregnant for the first time. So जब G1 हो तो उसको G1 के बजाय primary gravida भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में। तो जब ऐसा लिखा गया हो कि अब primary gravida came to your hospital, so what does it indicate कि ये first pregnancy है उसकी, ये पहली बार वो pregnant हुई है। And multi gravida मतलब More than 2. हाँ more than 2 या एटलीस्ट दो बार तो उसकी हो गई है प्रेग्नेंट, 2 बार तो हो ही गई है पहले, नाउ इट इज थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सो एटलीस्ट 2 बार से ज्यादा वो प्रेग्नेंट होगी, सो उसको मल्टी ग्रेविडा बोलेंगे। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज पैरिटी। पैरिटी इज द नंबर ऑफ बर्थ, नॉट द नंबर ऑफ फीटस, एग्जाम्पल ट्विंस। अगर पैरिटी ऐसा है कि मैं बोलूं कि एक प्राइमी ग्रेविडा है, सो जी क्या होगा, प्राइमी ग्रेविडा है तो G1, उसने डिलीवर किए हैं ट्विंस, तो आप पैरिटी क्या लिखोगे, 1 या 2? 2. 2 या 1, चलो बोलो। Parity 1 है just. पर उसने फीटस तो 2 डिलीवर किए हैं, ट्विंस थे। प्रेग्नेंसी delivery एकच तो बार एक હતી ને, time डिलीवरी में एकच बार થઈ। हाँ, हमें फीटस बच्चे काउंट नहीं करने हैं, पर डिलीवर दोनों बच्चे एक ही साथ डिलीवर किए ना, एक ही बार में डिलीवरी की है। सो पैरिटी वुड बी 1 वेदर इट इज ट्विंस, ट्रिपलेट्स और क्वाड्रुपलेट्स। हमें फीटस नहीं करने हैं पैरिटी में, कितनी बार उसने डिलीवर करवाया है वो देखना है। अगर ट्विंस है तो भी पैरिटी तो 1 ही कहलाएगी, ये चीज ध्यान रखनी है। एंड इट शुड बी कैरिड पास्ट 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। 20 वीक्स के बाद का पैरिटी में कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज 20 वीक्स से पहले है तो उसको अबॉर्शन बोलेंगे। सो ये ध्यान रखना है कि 20 वीक के बाद का हो, वेदर और नॉट द फीटस वॉज बोर्न अलाइव और नॉट। अगर ऐसा बोला गया हो कि प्राइमी ग्रेविडा उसने डिलीवर करा है एक फीटस एंड द फीटस स्टिल बर्थ हुआ है, सो पैरिटी 0 लिखोगे कि 1 लिखोगे? स्टिल बर्थ मतलब कि अभी डेड बॉर्न हुआ है, फीटस डेड निकला है, सो पैरिटी 0 होगी या 1 होगा? नहीं 1 होगी। 1 होगा, उसने डिलीवर तो किया ना, भले वो लाइव था या डेड था। सो जब डिलीवरी, जितनी डिलीवरी होती है उसको हम पैरिटी बोलते हैं। उसमें क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो पहला तो 20 वीक्स के बाद होनी चाहिए, अगर 20 वीक्स से पहले होती है तो हम उसको अबॉर्शन में कंसिडर करेंगे। फिर नंबर ऑफ फीटस हमें नहीं देखना है, वेदर ट्वींस है, ट्रिपलेट्स है, क्वाड्रुपलेट्स है, इट डजंट मैटर, डिलीवरी एक बार ही हुई है, सो पैरिटी 1 रहेगी। एंड अगर वो जिंदा है या मर गया है फीटस, वेदर इट इज बोर्न अलाइव और नॉट, वो भी हमें नहीं कंसिडर करना है, बस उसने डिलीवर किया, सो पैरिटी हमें वो ही लिखनी है 1। अंडरस्टूड? यस। नलीपैरा मतलब क्या? सो नलीपैरा इज द पर्सन who has not had a birth at more than 20 weeks of gestation। मतलब ऐसी फीमेल जिसने 20 वीक के बाद तक अभी भी कभी उसने डिलीवर करवाया ही नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है कि 20 वीक से पहले अबॉर्शन हो गया, सो उसमें भी हम उसको नली पैरा ही काउंट करेंगे, बिकॉज उसकी प्रेगनेंसी 20 वीक से ज्यादा हुई ही नहीं है, कभी भी उसने डिलीवर करा ही नहीं है 20 वीक के बाद। अंडरस्टूड? Yes. Yes, Yeah. ma'am. P0 होगा। यस, नली पैरा मतलब P0, कभी भी डिलीवरी हुई ही नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन देती हूँ कि एक फीमेल है जिसका जो प्राइमी ग्रेविडा है, सो G1 है एंड ना G2 है, चलो दिस इज सेकेंड टाइम गेटिंग प्रेग्नेंट एंड द फीमेल उसको पहले एक बार वो प्रेग्नेंट हो गई थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में उसका अबॉर्शन हो गया था एट 20 वीक्स। सो पैरिटी क्या होगी? 0। 0. 0 होगी, पहला तो अबॉर्शन हो गया, अभी सेकेंड टाइम तो प्रेग्नेंट है, कहाँ डिलीवरी हुई है। सो P0 अभी उतना ही बोला है कि शी इज प्रेग्नेंट, शी हैज नॉट डिलीवर्ड येट, वो 7 मंथ प्रेग्नेंट होगी, सिर्फ इतना ही है, तो P0 ही होगा, अभी डिलीवरी नहीं हुई है।
सो P 0 कहलाएगा, बिकॉज पहले वाला तो 20 वीक से पहले हो गया था, तो उसमें पैरिटी नहीं कंसिडर की जाएगी। सो वो फीमेल को हम नली पैरा ही बोलेंगे, भले वो 2 बार प्रेग्नेंट हो गई है, बट स्टिल शी इज नली पैरा। प्राइमी पैरा मतलब क्या, कि फर्स्ट टाइम डिलीवरी अंडरगॉन कर रही है, डिलीवरी एक्सपीरियंस कर रही है, जो 20 वीक्स से बाद है। पहले तो हम अबॉर्शन ही कंसिडर करेंगे। सो द फीमेल इज फर्स्ट टाइम डिलीवरिंग द फीटस आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। एंड मल्टीपैरा मतलब कि 2 बार से ज्यादा डिलीवरी हो गई है। सो मल्टीपैरा इज अ पर्सन हु हैज हैड 2 or more pregnancy of the stage of fetal viability, 2 से ज्यादा बार उसने डिलीवरी करवाई है। सो दैट इज मल्टीपैरा। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. हाँ। सो क्वेश्चन में ऐसे लिखकर वर्ड्स लिखे होंगे कि नली ग्रेविडा, प्राइमी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा, नली पैरा, प्राइमी पैरा, मल्टी पैरा। उससे आपको पता चलना चाहिए कि क्या सिचुएशन है, मदर की क्या सिचुएशन है, वो आइडेंटिफाई करना है आपको। ओके, नेक्स्ट इज GTPAL। हम ऑलरेडी जब गायनेकोलॉजी पढ़ रहे थे फाइनल ईयर में, तो GTPAL स्कोर लिख रहे थे। तो व्हाट इज दैट? G मींस ग्रेविड Gravidity. T मींस Term birth. टर्म बर्थ। उसका मतलब क्या? व्हाट इज टर्म बर्थ? 36 weeks સુધી survive કર્યું છે. फुल टर्म बेबी है, पूरी प्रेगनेंसी फुल टर्म बेबी है, दैट इज टर्म बर्थ। देन व्हाट इज P? preterm Preterm. प्रीटर्म, नॉट पारा, इट इज प्रीटर्म। व्हाट इज दैट प्रीटर्म मतलब? Before preterm ના 20 હોય, weeks. 36 36 weeks. Before 36 weeks, so that is preterm. Okay, what is A? abortion Abortion कितने हुए हैं? Yes. And what is L? Live birth, Living child. living child, Living child. not live birth. जन्मा Yes. कितला છે? कितने बच्चे उसके जिंदा है, तो that is GTPAL score। एक चीज खाली डिफरेंट है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, बाकी सेम है। सो लेट्स सी GTPAL स्कोर के लिए बॉक्स 22.2 देखते हैं। सो G मीन्स ग्रेविडिटी, मतलब कितनी प्रेगनेंसी है। T मीन्स टर्म बर्थ, कितना फुल टर्म बर्थ, कितनी बार फुल टर्म बर्थ हुआ है। P मीन्स प्री टर्म बर्थ, कितने बच्चे प्री टर्म बॉर्न हुए हैं। A मीन्स अबॉर्शन और मिसकैरेज, दोनों हम कंसिडर कर सकते हैं। L मीन्स करंट लिविंग चिल्ड्रन, कितने बच्चे उसके अभी जिंदा है। सो दैट इज L। सो एक यहाँ पर एक सिनारियो है, उसके ऊपर से आपको आइडेंटिफाई करना है। मुझे GTPAL स्कोर बताना है, नीचे लिखा है पर वो देखना नहीं है, खुद से ट्राई करना है। चलो, सो अ क्लाइंट इज प्रेग्नेंट फॉर द 4th टाइम। सो आपको क्वेश्चन रीड करते करते ही GTPAL स्कोर लिखते जाना है। सो 4th टाइम प्रेग्नेंट है, तो G क्या हुआ? 4. 4. So you have written G4. Then the client had 1 elective abortion in the first trimester. So okay, GTPAL. So first abortion, एक बार abortion कर दिया है, so क्या लिखोगे? A1. Okay. A child who was born at 40 weeks of gestation. एक child 40 week of gestation पर born हुआ है, तो कहाँ पर लिखोगे? 1 term term delivery. And a child who was born at a 36 week of gestation, तो इसको भी कहाँ लिखोगे? living child ना, another child, एक child 40 week पर and another child who was born at 36 week of gestation, तो उसको कहाँ पर लिखोगे? E માં જ L બે. L Okay. માં લખ नो, L तो लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं वो है। इसमें बोल रहे हैं कि एक फीमेल है जो 4th टाइम प्रेग्नेंट हुए है, एक बार उसने अबॉर्शन करवाया है, एक बार का बच्चा 40 वीक्स पर बॉर्न हुआ है, एक बच्चा 36 वीक पर बॉर्न हुआ है। सो ये वाली सिचुएशन को कहाँ लिखेंगे? टर्म में। ओके, सो T2। ओके, चलो, द क्लाइंट, तो क्या लिखा? द क्लाइंट इज ग्रेविडा फॉर टर्म 1 दैट इज 40 वीक्स एंड प्री टर्म 1। क्यों प्री टर्म लिखा? एंक्लेक्स में ये चीज याद रखनी है कि 37 वीक से पहले हो, सो उसको हम प्रीटर्म कंसीडर करेंगे। ये चीज नहीं है, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस न्यू थिंग। ओके, दिस इज समथिंग न्यू। सो एंक्लेक्स में ये चीज याद रखनी है कि 37 वीक से पहले बोला है,
so that is considered as a preterm. So T1 ही रहेगा and P1 आएगा because एक child 36 वीक पर born हुआ था. हम इंडिया में नॉर्मली में 36 वीक्स को हम फुल टर्म बोलते हैं, बट ये चीज आपको याद रखनी है इन एंक्लेक्स अगर 37 वीक से पहले बताया गया है जेस्टेशनल और डिलीवरी, तो उसको प्री टर्म कंसिडर करना है. अंडरस्टूड? हाँ, तो नाउ बोलो उसके लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं? 14 लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं? 2. 2 होंगे. कैसे? तो एक फुल टर्म पर बॉर्न हुआ था, एक प्री टर्म पर, तो 2 बच्चे अभी लिविंग है. अंडरस्टूड? अबॉर्शन वाला तो होगा ही नहीं. एंड 4th डिलीवरी है तो अभी बच्चा तो पैदा हुआ नहीं ना, सो सिर्फ 2 ही लिविंग चाइल्ड है. सो इससे आपको पता चल सकता है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई. क्वेश्चन ऐसे दिया गया होगा. सो जीटीपीएल स्कोर भी आपको पता लगाना होता है समटाइम्स, तो ये चीज ध्यान में रखनी है. सो G is 4, T1 term delivery is 1 because child is born at 40 week एक, and preterm is also 1 because एक child 36 week पर born हुआ था. Abortion is also 1 because abortion is counted in gravidity but is not included in parity. 20 week से पहले जो डिलीवर करवा देते हैं उसको abortion ही बोलते हैं. So parity में उसको consider नहीं करना है. And living children are 2 because parity is the number of births, not the number of fetus carried past 20 weeks of gestation. Parity मतलब क्या कि कितनी बार उसने डिलीवरी करवाई है after 20 weeks. And therefore the parity of the client is total 2. Parity उसकी 2 रहेगी. Parity यहाँ पर नहीं है, but parity उसकी 2 होगी because 2 ही बार डिलीवरी की है. एक बार तो अबॉर्शन हो गया था. टर्म और प्री टर्म दोनों मिलकर 2 ही बार उसने डिलीवरी की है. सो पैरिटी वुड बी 2. सो GTPAL स्कोर क्या होगा? 4, 1, 1 and 2. अंडरस्टूड? एंड para is also 2. Understood? Yes, ma'am. Yes or no? हाँ. So let's study about the description. So gravidity, G is gravidity, the number of pregnancy including the present one. अभी भी है या नहीं वो भी आप G में ही include कर दोगे. T is term birth, the number born at the term longer than 37 weeks. मतलब 37 weeks से ज्यादा. 37 weeks से कम, that is considered as a preterm. So P is preterm birth, the number of born before 37 week of gestation. 37 weeks से पहले जो born हुए हैं उसको preterm में consider करना है. Do not make a mistake. क्वेश्चन में यहाँ पर आपने 36 वीक देख लिया और टर्म में ही कैलकुलेट कर दिया 2, तो आपका GTPL स्कोर रॉन्ग हो जाएगा. सो मेक श्योर कि 37 वीक से कम है तो आप उसको प्री टर्म बोलोगे. देन A is abortion or miscarriages. The number of abortion or miscarriages included in the gravida if before 20 weeks of gestation. ग्रेविडा में तो हमने इंक्लूड किया था बिकॉज वो प्रेग्नेंट तो हुई थी, बट मिस अबॉर्शन कब कंसिडर करेंगे? जब 20 वीक से पहले उसको रिमूव कर दिया है, डिलीवर किया है या DNC DNE कुछ भी करके निकाला है, बट 20 वीक से पहले किया है, सो हम उसको अबॉर्शन में काउंट करेंगे. बट वो प्रेग्नेंट तो थी, सो उसको G में भी काउंट करना है. वो अबॉर्शन वाला भी प्रेगनेंसी में आप काउंट कर लोगे. L is number of current living children, means अभी कितने चिल्ड्रन उसके लिविंग है. So this number can be greater than P if the multiples were delivered. Yes, उसको ट्विंस डिलीवर हुए होते तो डिलीवरी तो 2 ही बार हुई है. चलो, एक ट्विंस 36 वीक पर डिलीवर हुए और एक सिंगल फीटस 40 वीक पर. सो बच्चे तो 3 हुए, बट पारा कितने थी? 2. सो इट कुड बी ग्रेटर देन P. P से ज्यादा भी हो सकता है और लेस देन P इफ अ लॉस अकर्ड. समटाइम्स ऐसा भी हो, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया हो कि एक बार 40 वीक्स पर चाइल्ड बॉर्न हुआ, एक बार 36 वीक पर हुआ, बट वो बच्चा 5 साल का होकर मर गया. सो लिविंग चिल्ड्रन कितने लिखोगे? एक ही लिखना है. अंडरस्टूड? तो ये क्वेश्चन देखना है कि किसी की डेथ हो गई है, लॉस हुआ है, 2 साल का होके, 1 साल का होके, या फिर 2 महीने के बाद भी वो मर गया हो. चलो बॉर्न हुआ, वो अच्छा नहीं था, 36 वीक पर प्री टर्म कंसिडर किया था, वो अच्छा नहीं था, तो 2 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई. सो लिविंग चिल्ड्रन 1 ही कंसिडर करेंगे. सो अगर लॉस हुआ है तो P से कम होगा. P 2 बार था बट चिल्ड्रन 1 ही है. सो ऐसा नहीं है कि जितनी पैरिटी होगी उतने चिल्ड्रन होंगे ही. ट्विंस होंगे तो ज्यादा होंगे पैरिटी से. अगर कुछ किसी की डेथ हो गई है बच्चे की तो कम भी हो सकते हैं. नोट, मल्टीपल्स काउंट एज अ 1 फॉर ग्रेविडिटी एज वेल एज 1 फॉर टर्म, प्रीटर्म और अबॉर्शन. यस, अभी ऐसा बोला है कि एक फीमेल है, प्रेग्नेंट है ट्विंस से,
एक ही बार प्रेग्नेंट हुई है, सो G1 लिखोगे या 2? 1. 1 ही लिखना है, भले 2 फीटस है। फिर चलो ऐसा भी है कि ये फीमेल की हिस्ट्री है कि ट्विन से प्रेग्नेंट हुई थी, एक बार डिलीवरी हुई थी, तो पारा कितना लिखोगे आप? पारा 1 और 2? ट्विन से एक बार डिलीवरी हुई है, सो 1 1 ही लिखोगे। 1 अगर उसका अबॉर्शन करवाया होता दोनों का, तो अबॉर्शन भी 1 ही लिखना है, भले दोनों ट्विंस को मारा था पर अबॉर्शन 1 लिखना है। टर्म डिलीवरी हुई हो दोनों ट्विंस की, जो ट्विंस है दोनों फीटस की टर्म डिलीवरी होती है तो भी 1 ही लिखना है। सो फीटस हमें काउंट नहीं करना है, इन शॉर्ट, अंडरस्टूड? टर्म डिलीवरी में भी 1 ही लिखना है, बिकॉज दोनों फीटस, दोनों बच्चे एक ही बार फुल टर्म में डिलीवर हुए। अगर प्री टर्म बर्थ हुआ होता ट्विंस का तो भी 1 ही लिखना है, 2 नहीं लिखना है। इन शॉर्ट 2 कब लिखोगे? सिर्फ एल में, लिविंग चिल्ड्रन में ही 2 आएगा, बाकी ट्विंस हमें फीटस काउंट नहीं करना है। सो जो भी मल्टीपल्स है, लाइक ट्रिपलेट्स है, ट्विंस है, क्वाड्रुप्लेट्स है, उसके प्रेगनेंसी में भी 1 लिखना है, पारा में भी 1 लिखना है, प्री टर्म में भी 1 लिखना है, टर्म में भी 1 लिखना है, और अबॉर्शन करवाया है तो भी 1 ही लिखना है, नॉट 2। अंडरस्टूड? Yes. Yes, ma'am. बट कब 2 लिखोगे? बट आर रिकॉर्डेड एज द एक्चुअल नंबर ऑफ लिविंग, सो एल में 2 लिखना है, बिकॉज लिविंग तो 2 है। अगर ऐसा बोला होता कि डिलीवरी के बाद एक लाइव था और एक स्टिल बर्थ हुआ था, तो लिविंग चिल्ड्रन भी कितने आएंगे? 1 आएंगे। 1. अंडरस्टूड? हाँ। Yes, सो ma'am. एल में ही सिर्फ नंबर ऑफ फीटस लिखने हैं, बाकी G, T, P, A सब चीज में 1 ही लिखना है, वेदर इट इज ट्विंस, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुप्लेट्स, जितने भी नंबर ऑफ फीटस हो वो हमें नहीं देखना है। सिर्फ लिविंग चिल्ड्रन में ही हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने बच्चे जिंदा है, लिविंग है, मरे हुए कैलकुलेट नहीं करने हैं। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस और नो? हाँ, ओके। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, देन उसके बाद हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस, प्रेगनेंसी के साइंस हम स्टडी करेंगे। Okay, so let's start with the pregnancy signs. Pregnancy signs means कैसे पता चलेगा कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है? So let's study about the signs. There are 3 types of signs: presumptive sign, probable sign and positive sign. ये तीनों साइंस आपको याद रखनी है। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि एक फीमेल है, उसमें ये सारी साइन एंड सिम्टम्स है, तो ये कौन सी साइन है? प्रिजम्पटिव साइन है या प्रोबेबल साइन है या पॉजिटिव साइन है? या फिर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी प्रोबेबल साइन है? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से साइंस प्रिजम्पटिव साइंस है, कौन सी साइंस प्रोबेबल साइंस है एंड कौन सी साइंस पॉजिटिव साइंस है। सो लेट्स स्टडी फर्स्ट इज प्रिजम्पटिव साइन। प्रिजम्पटिव साइन मतलब अज्यूम कर रहे हैं, उसको कुछ साइन एंड सिम्टम्स, वो फीमेल जो भी प्रेग्नेंट है उसको फील होगा कि समथिंग इज डिफरेंट इन माय बॉडी, एंड फीमेल कैन फील, उससे ये कंफर्म नहीं होता कि हाँ वो प्रेग्नेंट ही होगी, बट उसको कुछ चेंजेस फील हो रहे हैं जिससे शायद वो प्रेग्नेंट हो सकती है। सो दैट इज प्रिजम्पटिव साइन। सो फर्स्ट इज एमेनोरिया। व्हाट इज दैट? एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंसेस। सो उसको डाउट होगा कि वेदर आई एम प्रेग्नेंट और नॉट। हर बार प्रेगनेंसी में एमेनोरिया होता है बट इट इज नॉट श्योर कि हाँ वो प्रेग्नेंट ही होगी, शी इज जस्ट अज्यूमिंग। सो दिस आर द प्रिजम्पटिव साइंस। सो एमेनोरिया होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, दैट इज ऑल्सो अ प्रिजम्पटिव साइन। इट इज नॉट कंफर्मिंग कि वो प्रेग्नेंट ही होगी, दूसरी कंडीशंस में भी हो सकता है नोजिया वॉमिटिंग। सो ये सारी जो साइंस है उससे लाइक कंफर्म नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है, बट फीमेल कैन फील कि समथिंग इज डिफरेंट हैपनिंग इन हर बॉडी। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट टेंडरनेस होगा, टिंगलिंग, फीलिंग ऑफ फुलनेस, इंक्रीज साइज एंड पिगमेंटेशन ऑफ एरियोला।
सो ब्रेस्ट चेंजेस होंगे, ब्रेस्ट टेंडरनेस होगा, एरियोला का पिगमेंटेशन चेंज होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगी, उसको फुल फील होगा, लाइक ब्लॉटेड फील होगा एब्डोमेन में, टिंगलिंग सेंसेशन हुआ हुआ करेगा उसको, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, देन क्विकनिंग वो फील कर पाएगी। क्विकनिंग मतलब the first perception of fetal movement by the pregnant individual may occur at 16th to 20th week of gestation. वो फीमेल को फील होगा, जो फर्स्ट फीटल मोमेंट है अंदर उसको फील होगा कि हाँ देर इज समथिंग मोमेंट, बट वो मोमेंट कब फील होगी? एट 16 to 20 वीक, मतलब 4 से 5 महीने प्रेग्नेंट हो जाएगी तब उसको फील होगा कि अंदर फीटस मूव कर रहा है। एवरी प्रेगनेंसी इज यूनिक एंड क्विकनिंग कुड हैपन अर्लियर और लेटर। ऐसा नहीं है कि सारी फीमेल्स को 16 से 20 वीक में फील हो ही जाएगा, हर प्रेगनेंसी अलग होती है। सो कुछ लोगों को क्विकनिंग जल्दी फील होती है, कुछ लोगों को 20 वीक्स के बाद भी होगी। सो क्विकनिंग इज अ प्रिजम्पटिव साइन। नेक्स्ट फटीग, फटीग होगा फीमेल को। एंड another thing is changes to the skin pigmentation such as linea nigra and melasma. What is linea nigra? Skin changes होंगे, linea nigra होगा। What is that linea nigra? જે પેરી અમ્બિલિકલ પર ડાર્ક પિગમેન્ટેડ લાઈન હોય ને, हाँ, सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके जिफोइड प्रोसेस तक पूरी एक लाइन होगी, एक डार्क लाइन होगी, दैट इज लीनिया नाइग्रा। व्हाट इज मेलेस्मा? આ જે ફેસ પર થાય, सॉरी, શું થાય? ફેસ પર આપણે કહીએ Skin फेस, pigmentation. फेस पर स्किन पिगमेंटेशन हो जाता था, जिसको हम क्या बोलते थे इन फाइनल ईयर? क्लोएज्मा। यस, क्लोएज्मा जो बोलते थे कि फेस पर जो पिगमेंटेशन हो जाता था। द अनदर नेम फॉर क्लोएज्मा दैट इज मेलेस्मा। तो अगर क्वेश्चन में मेलेस्मा लिखा है सो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये क्या नई चीज है, इट इज द क्लोएज्मा, उसका दूसरा नाम है मेलेस्मा। अंडरस्टूड? सो दिस आर द प्रिजम्पटिव साइन। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोला हो कि बिलो गिवन विच इज द प्रिजम्पटिव साइंस, तो ऑप्शन में ये चीजें हो तो दैट वुड बी योर प्रिजम्पटिव साइन। ये प्रिजम्पटिव साइंस है। नेक्स्ट इज प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइन मतलब कि हाँ अभी वो शायद प्रेग्नेंट ही हो सकती है, लाइक ऐसे साइंस तो प्रेगनेंसी में ही देखने को मिलेंगे। सो दिस आर द प्रोबेबल साइंस। क्या होगा उसमें? यूट्राइन एनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। देन हेगर्स साइन। व्हाट इज दैट? हेगर्स साइन मतलब ये सारे साइंस याद रखने हैं। व्हाट इज हेगर्स साइन? व्हाट इज हेगर्स साइन? यूट्रस की लोअर सेगमेंट होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। सो जब पीवी करोगे, पर वजाइनल एग्जामिनेशन आप करोगे, तो यू कैन फील कि फीट अंदर जो यूट्रस की लोअर सेगमेंट है वो सॉफ्ट है। ऐसे आप कंप्रेस करोगे, बाहर से प्रेस करोगे और पीवी करोगे तो लोअर सेगमेंट आपको सॉफ्ट फील होगी। 6 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद ऐसा फील होता है। सो दैट इज हेगर साइन। व्हाट इज गुडेल साइन? softening of cervix. सर्विक्स सॉफ्ट हो जाएगा। So that is Goodell's sign, softening of the cervix that occurs at the beginning of second month. जैसे ही second month pregnant हो जाएगी फीमेल तो Goodell sign देखने को मिलेगी। What is Chadwick sign? जो सर्विक्स है वो पर्पल कलर का हो जाएगा, वायलेट डिस्कलरेशन, पर्पल डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन जैसा हो जाएगा। सो दैट इज चैडविक साइन। वायलेट कलरेशन of the mucous membrane of the cervix, vagina and vulva that occurs at about week 6. Week 6 जब 6 वीक प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल, सो 1 month and 15 days प्रेग्नेंट हो जाएगी, तब वजाइना, वल्वा, सर्विक्स सब ब्लू कलर का दिखेगा, डार्क कलर का हो जाएगा, वायलेट डिस्कलरेशन हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज बैलॉटमेंट। व्हाट इज दैट? बैलॉटमेंट मींस हाँ यस, जब आप वो मदर का लाइक उसको सुपाइन पोजीशन में सुला दोगे एंड आप उसके एब्डोमेन, उसका जो एनलार्ज यूट्रस है उसको आप पाल्पेट करोगे, फिंगर से प्रेस करोगे, सो अंदर से भी ऐसे रीबाउंड होगा, लाइक आप दबाओगे तो फिर से वो अंदर से लाइक धक्का कोई दे रहा है वैसा फील होगा। सो रीबाउंडिंग ऑफ फीटस अगेंस्ट द एग्जामिनर्स फिंगर ऑन द पाल्पेशन। जैसे ही आप अंदर दबाओगे तो अंदर फीटस है तो फिर से वो रीबाउंड होगा। सो दैट इज द बैलॉटमेंट साइन। Next is Braxton Hicks contraction. What is that? Braxton Hicks contraction? જે પૂરી પ્રેગ્નન્સી આપણને પેઇનલેસ કોન્ટ્રાક્શન થયા કરે. हाँ,
इट इज डिफरेंट फ्रॉम जो लेबर वाला कॉन्ट्रेक्शन होता है उससे अलग है। फीमेल को इरेग्युलर लाइक कभी कभी कॉन्ट्रेक्शन ऐसे एकदम आ जाएंगे एकदम चले जाएंगे, ऐसे कॉन्ट्रेक्शंस पेन लेस कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं, पेन नहीं होता। अगर पेन होगा सो दैट इज द साइन की डिलीवरी होने वाली है, इंडक्शन ऑफ डिलीवरी हो गया है। सो ब्रेक्सटन हिट कॉन्ट्रेक्शन क्या है? सो इरेगुलर पूरी प्रेगनेंसी में होते रहेंगे कॉन्ट्रेक्शन बट वो पेनलेस होंगे। सो इरेगुलर पेनलेस कॉन्ट्रेक्शन दैट मे अकर इंटरमिटेंटली थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, लाइक कभी कभार एकदम रैंडमली हो जाएंगे बंद हो जाएंगे, सो ऐसा होता रहता है। एंड नेक्स्ट इज पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ HCG। सो वो जो प्रेगनेंसी किट होती है, यूरिन प्रेगनेंसी किट टेस्ट जो करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यूपीटी और यूपीटी जो किट होता है, सो वो अगर पॉजिटिव आता है तो दैट इज कंसिडर एज अ प्रोबेबल साइन, उसको हम प्रोबेबल साइन में कंसिडर करेंगे। अंडरस्टूड? ये सारे साइंस का मतलब याद रखना है आपको कि व्हाट इज हैगर साइन, गुडेल साइन, चैडविक साइन। दे विल नॉट आस्क यू कि हैगर साइन कब देखने को मिलेगा, दैट अबाउट वीक 6, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, बट व्हाट इज हैगर साइन ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट, दिस इज कंफर्मिंग कि मदर जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट ही है। सो fetal heart rate detected by electronic Doppler transducer at 10 to 12 weeks and by fetoscope at 20 weeks। आपको fetal heart rate सुनाई दे रही है, so this is confirming कि हाँ वो pregnant ही है। so Doppler से 10 to 12 week पर आपको सुनाई देगी, fetoscope से आपको 20 weeks पर सुनाई देगी। so it is confirming कि हाँ अब तो वो pregnant ही है। next is active fetal movement palpable by examiner। क्विकनिंग सिर्फ मदर को फील हो रहा था, हम फील नहीं कर सकते, बट हम जैसे पाल्पेट करेंगे यूट्रस को तो हमें भी फीटल मोमेंट फील होगी। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। एंड नेक्स्ट इज आउटलाइन ऑफ फीटस वाया रेडियोग्राफी और यूएसजी। हम यूएसजी करेंगे तो पूरी फीटस हमें दिखेगा कि कैसा है क्या है। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। इन शॉर्ट जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं यूएसजी से लेके कोई भी आप करते हो, सो दैट इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव साइन। वी हैव वन टेबल, टेबल की मदद से आप इजीली याद रख सकते हो। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मैम તમે કીધું ફીટલ હાર્ટ રેટ और 10 to 12 તો 8 वीक के हम डायग्नोस्टिक ना डायग्नोस्टिक इज कंसिडर है ક્વિકનિંગ આપણે પ્રોબેબલ માનાંગે ना। કેમ કે 5 મંથ તો થઈ ગયા છે ઓલરેडी। हाँ बट ए मे बी लाइक फीमेल्स को ऐसे भ्रम हो रहे हो, assumptions हो रहे हो, so that's why it is considered as a presumptive sign। so presumptive sign मतलब changes felt by the woman only। ऐसा नहीं है, वो कुछ बार ऐसा भी होता है कि फीमेल्स को ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है बट इट इज नॉट श्योर कि हाँ शी इज श्योरली प्रेग्नेंट। प्रोबेबल साइन मतलब मोर सर्टेन है, प्रिजम्पटिव से अच्छे है बट नॉट डेफिनेटिव। एंड पॉजिटिव मतलब दैट इज डेफिनेटिव अनमिस्टेकेबल कि हाँ अब तो वो प्रेग्नेंट ही है। सो ये टेबल याद रखोगे तो इजीली आपको याद रह जाएगा कि कौन से प्रिजम्पटिव साइन है, कौन से प्रोबेबल साइन है, कौन से पॉजिटिव साइन है। सो ये आपको याद रखने हैं। एग्जाम में दे विल आस्क यू कि ऑप्शंस होंगे, उसमें से आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी साइंस प्रिजम्पटिव है, प्रोबेबल है या पॉजिटिव है, या फिर आपको क्वेश्चन में ही साइंस दी गई होगी, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये प्रिजम्पटिव है, प्रोबेबल है या पॉजिटिव है। अंडरस्टूड? हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स Yes, पता ma'am. चला? हाँ ओके। Done. Took the screenshot. Everyone took the screenshot. Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट इज फंडल हाइट। सो वी नो कि जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करेगा फंडल हाइट भी इंक्रीज होगी, ग्रो होगी। सो फंडल हाइट हमें मेजर करनी होती है। सो लेट्स सी बॉक्स 22.3 फॉर फंडल हाइट। मेजरिंग फंडल हाइट कैसे मेजर करनी है, चलो।
होता है फंडल हाइट? यस, कैसे फंडल हाइट मेजर करोगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कहाँ पर रखोगे मेजरिंग टेप का जो स्टार्टिंग एंड है वो? वो एक जिफाइड प्रोसेस टू सिंपल। जीफाइड प्रोसेस से आप स्टार्ट करोगे मेजरमेंट? नहीं नहीं, तो कहाँ पर रखोगे स्टार्टिंग पॉइंट मेजर टेप का? सिंपल Symphysis pubis पर, yes. And धीरे 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 you have to hold the measure tape in the last finger. एंड आप ऐसे हैंड मूव करोगे सो मेजर टेप मूव होगी, और जहां पर आपको ऐसे एंड फील हो रहा है कि हाँ यहाँ पर फंडस एंड हो गया, सो दैट विल बी द फंडल हाइट, वो फंडल हाइट कहलाएगी. सो हाउ टू मेजर द फंडल हाइट? प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजिशन. हमें सुपाइन पोजिशन में क्लाइंट को सुला देना है. प्लेस द एंड ऑफ द मेजर टेप एट द लेवल ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस. उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक सिम्फाइसिस प्यूबिस पर रखना है. सो हियर इन द इमेज यू कैन सी कि यहाँ पर आपको मेजर टेप रखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है सिम्फाइसिस प्यूबिस पे. यू कैन सी हियर. देन स्ट्रेच द टेप टू द टॉप ऑफ यूट्राइन फंडस. ऐसे स्ट्रेच करते जाना है. जब आपको यहाँ पर एंड हो जाए कि हाँ यहाँ तक ही फील हो रहा है, तो दैट वुड बी द फंडल हाइट. नोट एंड रिकॉर्ड द मेजरमेंट. आपको लिखना है कि इतना मेजरमेंट आया फंडल हाइट का. सो लेट्स स्टडी द डिस्क्रिप्शन. फंडल हाइट इज मेजर टू इवेल्युएट द जेस्टेशनल एज ऑफ द फीटस. फंडल हाइट हम क्यों लेते हैं? फंडल हाइट से हमें पता चलेगा कि अप्रोक्सीमेट जेस्टेशनल एज क्या है, कितने मंथ प्रेग्नेंट है वीमेन. During the second and third trimester, that is week 18 to 30, the fundal height in centimeter is approximately equals to the fetal age in week plus or minus 22 centimeter. So normally कैसा होता है, इतना याद रखना है कि 18 से 30 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, उनमें जेस्टेशनल एज क्या होगी, फंडल हाइट क्या होगी. तो जितने वीक की जेस्टेशन है, लाइक मदर अगर 12 वीक प्रेग्नेंट है, फॉर एग्जांपल 20 वीक प्रेग्नेंट है, सो जेस्टेशनल फंडल हाइट क्या होगी, 22 होगी, 20 होगी या फिर 18 होगी. सो प्लस और माइनस 2 सेंटीमीटर ज्यादा या कम होगी या फिर सेम होगी, इक्वल होगी या फिर प्लस और माइनस 2 सेंटीमीटर होगी. अंडरस्टूड? तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ इसके आसपास होगी. At 16 weeks, the fundus can be found approximately halfway between the symphysis pubis and umbilicus. Yes. Let's see the image. Image देखनी है. तो अगर मदर 16 वीक की प्रेग्नेंट होती है, सो नॉर्मल फंडस कहाँ पर होता है? सो सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके अम्बिलिकस के बीच में, लाइक हाफ वे में होगी, आधी जगह पर होगी. सो दिस इज द सिम्फाइसिस प्यूबिस, दिस इज द अम्बिलिकस. उसके हाफ वे में है. सो एट 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी द फंडल हाइट वुड बी हियर. At 20 to 20 weeks of pregnancy, the fundus is approximately at the location of umbilicus. Yes. अगर 20 से 22 वीक प्रेगनेंसी होगी तो अम्बिलिकस के आसपास होगी, या फिर एट द अम्बिलिकस होगी, या फिर थोड़ी ऊपर नीचे होगी, बट नियरर टू द अम्बिलिकस होगी, अप्रोक्सीमेटली टू द लोकेशन ऑफ अम्बिलिकस. At 36 week of pregnancy, the fundus is at ज़ीफॉइड प्रोसेस. 36 वीक की प्रेगनेंसी पर फंडस पूरा ज़ीफॉइड प्रोसेस के पास होगा. एंड एज द यस, ये होगा. 36 की वीक के बाद क्या होगा? ज़ीफॉइड प्रोसेस से आगे जाएगा फंडस? नहीं, तो पाछो ऊपर से नीचे आएगा. क्यों नीचे आएगा फंडस? बिकॉज फीटस अभी डिसेंड होना स्टार्ट हो जाएगा. वो धीरे धीरे पेल्विस में एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा. पहले वो एब्डोमेन में था. अभी जैसे जैसे डिलीवरी नजदीक आने जाएगी तो फीटस डिसेंड होके पेल्विस में आ जाएगा. तो इसीलिए फंडस हाइट कम हो जाती है आफ्टर 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. सो यू कैन सी हियर 36 वीक में ज़ीफॉइड प्रोसेस के पास है, बट 40 वीक्स में नीचे दिया गया है कि नीचे आ गया है, डिसेंड हो गया है, बिकॉज फीटस पेल्विस में एंटर हो गया है, डिसेंड होना स्टार्ट हो गया है. यस. जब भी आप फंडल हाइट मेजर करते हो तो आपको क्या करना है? आस्क द क्लाइंट टू वॉइड बिफोर मेजरमेंट बिकॉज ऑफ पॉसिबल यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फुल ब्लैडर. जब भी फंडल हाइट मेजर करनी होती है आपको फीमेल को बोलना होगा कि वॉइड करके आओ, ब्लैडर एम्प्टी करके आओ. बिकॉज ब्लैडर फुल होगा तो फंडल हाइट में थोड़ा वेरिएशन आएगा, यूट्रस डिस्प्लेस हो सकता है. सो उसको ब्लैडर एम्प्टी करवा कर ही आपको फंडल हाइट लेनी होगी.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेड पॉइंट जो आपको याद रखना है, when assessing fundal height, monitor the client closely for supine hypotension. ये चीज याद रखनी है. When placed in the supine position after 20 weeks of gestation. जब भी आप फंडल हाइट मेजर करते हो या फीमेल का एग्जामिनेशन करते हो और आप उसमें सुपाइन पोजीशन दे रहे हो, so you have to always monitor that female closely for supine hypotension. What is that supine hypotension? मतलब ये पेशेंट सुपाइन पोजीशन આપે તો બ્લડ પ્રેશર ડ્રોપ થાય. हाँ, क्यों ड्रॉप होता है? व्हाट इज द रैशनल? इट इज नॉट रिटन हियर, बट उसका रैशनल क्या है? व्हाट इज द रैशनल? और वो कब होता है सुपाइन पोजीशन? खास कब मॉनिटर करना है? आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, मतलब 5 महीने के बाद अगर फीमेल को आप सुपाइन पोजीशन देते हो तो यू हैव टू क्लोजली मॉनिटर कि उसको सुपाइन हाइपोटेंशन ना हो जाए. सो दैट्स व्हाई नॉर्मली डॉक्टर्स फीमेल को क्या बोलते हैं कि साइड लाइन पोजिशन में सो जाना है, नॉट इन द सुपाइन पोजिशन. बट क्यों होता है? व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दैट? सुपाइन हाइपोटेंशन क्यों होता है आफ्टर 5 मंथ्स? superior vena cava syndrome. यस, इंफीरियर वेना केवा सिंड्रोम. क्या होगा? यूट्रस एकदम ग्रो हो गया है, अंदर फीटस है, मदर जैसे ही सो जाएगी उसका पूरा प्रेशर इंफीरियर वीना केवा पर आएगा, इंफीरियर वीना केवा कंप्रेस हो जाएगा, सो वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, उसकी वजह से फीमेल को सुपाइन हाइपोटेंशन हो सकता है. सो शायद अगर रैशनलाइज क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि सुपाइन हाइपोटेंशन फीमेल में क्यों होता है. इट इज ड्यू टू द पोजिशन, इंफीरियर वीना केवा सिंड्रोम. तो आपको इतना याद रखना है कि मदर को सुपाइन पोजीशन दोगे तो यूट्रस की वजह से इंफीरियर वीना केवा पर प्रेशर पड़ेगा, अओर्टा पर भी प्रेशर पड़ता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अओर्टोवीनो वीनस सिंड्रोम, भी उसको ऐसा भी नाम बोलते हैं कि अओर्टा भी पर, अओर्टा जो एब्डोमिनल अओर्टा है उस पर भी प्रेशर पड़ता है, वीनस इंफीरियर वीना केवा पर भी प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से फीमेल सुपाइन हाइपोटेंशन एक्सपीरियंस करेगी. सो यू हैव टू क्लोजली मॉनिटर फॉर दैट. अंडरस्टूड? यस. अगर फीमेल में हाइपोटेंशन हो गया तो फीटस को भी ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है. एंड दिस इज व्हाई इट इज रिटन इन अ रेड पॉइंट. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल प्रेगनेंसी चेंजेस. यस, वी नो, जैसे हमने ओल्डर एज में पढ़ा था कि एज हो जाती है उसकी वजह से सारी सिस्टम पर चेंजेस होता है. सो फीमेल्स में भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सारी सिस्टम में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे. सो लेट्स स्टडी ईच एंड एवरी सिस्टम कि हर सिस्टम में क्या चेंजेस होंगे. But before starting that, let's study the read important point. Culture often determines health beliefs, values, and family expectations. Therefore, it is important to assess the cultural beliefs during care of the pregnant client. हर फीमेल में लाइक प्रेगनेंसी वक्त उनमें अलग अलग कल्चर्स, उनकी हेल्थ बिलीव्स वो लोग फॉलो करते हैं, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी अलग अलग होगी. सो बीइंग अ नर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई प्रेग्नेंट फीमेल की केयर कर रहे हो, सो उसकी कल्चरल बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ, उसकी वैल्यूज जो भी है वो आपको पता होनी चाहिए कि उसके कल्चर में लाइक कुछ कल्चर्स में ऐसा होगा कि यू कैन नॉट टच द फीमेल, आप उसका यूट्रस टच नहीं कर सकते. तो आपको पहले पूछना होगा कि इट इज एक्सेप्टेबल कि मैं आपका पाल्पेशन करूं या नहीं. सो यू हैव टू चेक देयर कल्चरल बिलीफ्स, उसके बाद ही उसकी केयर करनी है. सो लेट्स स्टडी अबाउट फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या चेंजेस होंगे? सो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस, पूरा ब्लड वॉल्यूम जो है सर्कुलेट हो रहा था वो इंक्रीज हो जाएगा. प्लाज्मा ऑल्सो इंक्रीजेस, टोटल रेड ब्लड सेल वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब आरबीसी भी इंक्रीज हो जाएंगे. सो टोटल वॉल्यूम इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली 40 to 50%. प्लाज्मा इंक्रीज हो गया, आरबीसी इंक्रीज हो गया. सो कंबाइनली टोटल सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो 40 to 50% इंक्रीज हो जाएगा. पहले था उसमें इतना ज्यादा हो जाएगा. फिजियोलॉजिकल अनीमिया हो सकता है. क्यों होगा? द रैशनल इज the plasma increase exceeds the increase in the production of RBC. हमने ऑलरेडी स्टडी किया. फॉर एग्जांपल नॉर्मल फीमेल है, इसका प्लाज्मा पहले इतना था, अभी इतना इंक्रीज हो गया है, इतना हो गया है. एंड सी हियर, एक फीमेल है उस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस इज द प्लाज्मा लेवल, इतना फॉर एग्जांपल 10% था, अभी इंक्रीज होके 40% हो गया है. एंड आरबीसी भी इंक्रीज हुए हैं. सो आरबीसी भी चलो 10% थे बट इंक्रीज होके
30% ही इंक्रीज हुआ है. सो प्लाज्मा इंक्रीज एक्सिट्स द इंक्रीज फ्रॉम द आरबीसी. आरबीसी प्लाज्मा दोनों इंक्रीज होता है, बट प्लाज्मा ज्यादा इंक्रीज होगा. सो प्लाज्मा ज्यादा इंक्रीज होगा तो आरबीसी क्या हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे. सो डाइल्यूशनल की वजह से फिजियोलॉजिकल अनीमिया होता है फीमेल में. अंडरस्टूड द रैशनल क्यों फिजियोलॉजिकल अनीमिया होता है? बिकॉज प्लाज्मा आरबीसी से ज्यादा इंक्रीज हो गए, सो आरबीसी डाइल्यूट हो गए. ऑलरेडी हमने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में देखा था कि अगर फ्लूइड बढ़ जाएगा तो सोडियम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा ड्यू टू डाइल्यूशन. सो अंडरस्टैंड दिस. आयरन रिक्वायरमेंट्स आर इंक्रीज, आयरन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी. देन हार्ट साइज इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के वक्त हार्ट की साइज इंक्रीज हो जाती है एंड द हार्ट इज elevated slightly upward and to the left because of displacement of the diaphragm as uterus enlarges. Yes, जैसे जैसे यूट्रस एनलार्ज होगा यू कैन सी इन द फिगर कि हार्ट थोड़ा ऊपर चला जाएगा और थोड़ा लेफ्ट में खिसक जाएगा बिकॉज यूट्रस ग्रो हो रहा है, वो डायफ्राम पर प्रेशर कर रहा है, तो इसकी वजह से हार्ट को डिस्प्लेस होना पड़ेगा. Changes are minor and reverse soon after childbirth. ये जो हार्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है सो इतना ज्यादा डिस्प्लेस नहीं हो जाता है, वो थोड़ा माइनर डिस्प्लेस होता है और जैसे ही चाइल्ड बर्थ हो जाएगा फिर से वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा. रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर में अकर. आपने देखा होगा कि फीमेल को एडिमा और वो होता है, सो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन भी होता है जिसकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम जैसे बड़ा लगेगा. कार्डियोवेस्कुलर में बहुत सारा सर्कुलेटिंग वॉल्यूम होता रहेगा वेसल्स में. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस होंगे? तो ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीजेस बाय अप्रोक्सीमेटली 15 to 20%. अभी फीटस को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाएगा, 15 से 20% इंक्रीज हो जाएगा. डायफ्राम इज एलिवेटेड बिकॉज ऑफ एनलार्ज यूट्रस. हमने ऑलरेडी वो इमेज में देखा कि डायफ्राम ऊपर हो गया है. Hormonal changes in estrogen and progesterone level may have an effect on respiratory system. Yes, जो estrogen and progesterone levels changes हुए हैं उसकी वजह से respiratory system में भी affect होता है. estrogen की वजह से ज्यादा mucus respiratory system में और पूरी body में accumulate होना start हो जाता है and respiratory rate जो होता है वो यूजुअली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू दिस हॉर्मोन्स. सो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में अफेक्ट होगा. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में भी एक्सपीरियंस. आपने देखा होगा कि वो फीमेल जो भी प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसको सांस ज्यादा फूल जाती है, लाइक थोड़ा भी चलने के बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा. सो दिस आर द चेंजेस. ये जो रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद रखना है. During pregnancy, a woman's pulse rate may increase 10 to 15 beats per minute. So, let's say कि pulse rate है, heart rate है, during pregnancy क्या हो गई? Increase हो गई. Yes. The blood pressure slightly decreases in the second trimester. Second trimester में blood pressure क्या होगा? स्लाइटली डिक्रीज होगा. जो नॉर्मल उसका ब्लड प्रेशर होता है उसमें से थोड़ा कम हो जाएगा. देन इंक्रीजेज इन द थर्ड ट्राइमेस्टर. थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लड प्रेशर कैसा होगा? थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लड प्रेशर कैसा होगा? इंक्रीज होगा, बट कितना होगा? बट नॉट अबाउट द प्री प्रेगनेंसी लेवल. जो प्रेग्नेंट होने से पहले उसका ब्लड प्रेशर रहता था उतना ही होगा. सो नॉर्मल ही होगा. ये डिक्रीज से इंक्रीज हुआ है, बट जो प्री प्रेग्नेंट स्टेट पर उसका रहता था उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा. सो इट वुड बी इंक्रीज बट नियर टू द नॉर्मल, उससे ज्यादा नहीं. एंड द रेस्पिरेटरी रेट रिमेन्स अनचेंज्ड और स्लाइटली इंक्रीज. तो रेस्पिरेटरी रेट या फिर अनचेंज रहेंगे या फिर इंक्रीज हो गई. सो ये चीज आपको याद रखनी है. हार्ट रेट इंक्रीजेस, blood pressure in second trimester decreases, in third trimester increases, but not more than pre-pregnancy level. अगर pre-pregnancy level में उसका elevated रहता है तो वो elevated ही रहेगा. In short, फीमेल का प्रेगनेंसी से पहले जितना ब्लड प्रेशर रहता था उतना ही होगा इन थर्ड ट्राइमेस्टर. एंड रेस्पिरेटरी रेट अनचेंज या फिर इंक्रीज. तो ये जो है वो आपको याद रखना है. अंडरस्टूड? यस और नो? Yes. यस. नेक्स्ट इज जीआई सिस्टम. जीआई सिस्टम में क्या चेंजेस होंगे? सो इसमें आपको हार्मोन का याद रखना पड़ेगा. आई एम टेलिंग यू. चलो फर्स्ट
नोजिया वॉमिटिंग होगा. सो नोजिया एंड वॉमिटिंग में अकर एज अ रिजल्ट ऑफ HCG. ये याद रखना है. नोजिया वॉमिटिंग क्यों होता है फीमेल को? Why the female experience nausea vomiting due to HCG hormone, human gonadotrophin hormone. ये हार्मोन की वजह से nausea vomiting होता है. This condition typically subsides by third month. थर्ड ट्राइमेस्टर में nausea vomiting चला, थर्ड मंथ में nausea vomiting चला जाएगा. थर्ड मंथ के बाद उतना नहीं होगा. Appetite is often increased during pregnancy. Yes, भूख ज्यादा लगती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. फूड इनटेक में बी इंक्रीज बाय 15 to 20%. फूड इनटेक 15 से 20% इंक्रीज हो जाएगा बिगिनिंग इन द अर्ली प्रेगनेंसी. जैसे जैसे लाइक अर्ली प्रेगनेंसी स्टार्टिंग में फूड इनटेक ज्यादा हो जाएगा. ऑल्ट्रेशन इन टेस्ट एंड स्मेल में अकर. जो फीमेल है उसके टेस्ट में स्मेल में भी ऑल्ट्रेशन हो जाएगी. पुअर एपेटाइट में अकर लेटर इन प्रेगनेंसी. अर्ली क्या होता था? एपेटाइट इंक्रीज होती थी. लेटर प्रेगनेंसी में क्या होगा? पुअर एपेटाइट होगा. क्यों? उसको भूख कम लगेगी बिकॉज ऑफ द डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी. क्यों? बिकॉज लेटर प्रेगनेंसी में तो यूट्रस कितना बड़ा हो गया है, तो उसकी वजह से इंटेस्टाइन पर प्रेशर गिरेगा और जो मोटिलिटी है वो कम हो गई है. सो फीमेल ऑलवेज फुल फील करेगी और उसकी वजह से उसकी एपेटाइट कम हो जाती है लेटर इन प्रेगनेंसी. कॉन्स्टिपेशन में अकर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन. कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? द रीजन इज, द रैशनल इज, क्यों कॉन्स्टिपेशन होता है? द रैशनल इज Increase in Progesterone. progesterone. प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो गया है. एक ये रीजन है. दूसरा रीजन क्या है? प्रोडक्शन और प्रेशर फ्रॉम द यूट्रस रिजल्टिंग इन डिक्रीज GI मोटिलिटी. हार्मोनल रीजन क्या है? प्रोजेस्टेरॉन, नॉट ईस्ट्रोजन. प्रोजेस्टेरॉन की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है. एंड द अनदर रीजन, यूट्रस ग्रो हो रहा है. फिजियोलॉजिकल रीजन इज यूट्रस ग्रो हो रहा है, वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, मोटिलिटी कम हो गई है. सो ऑब्वियसली फीमेल कॉन्स्टिपेशन फेस करेगी. नेक्स्ट इज फ्लैचुलेंस एंड हार्टबर्न. फ्लैचुलेंस एंड हार्टबर्न क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिक्रीज GI मोटिलिटी. पहले तो यूट्रस प्रेशर कर रहा था, GI मोटिलिटी कम हो गई है, तो उसको ऑलवेज गैस वाला फील होगा और हार्टबर्न, रिफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे. एंड स्लोड एम्प्टिंग ऑफ स्टमक caused by an increase in progesterone production. Again, flatulence and heartburn का hormonal reason क्या है? Rational प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन की वजह से वो होता है. एंड द अनदर रीजन इज कि प्रेशर हो रहा है, स्टमक इजीली एम्प्टी नहीं हो रहा है, उसकी वजह से गैस, फ्लैचुलेंस फील होगा या फिर हार्टबर्न हो सकता है. हेमरॉइड्स में अकर बिकॉज ऑफ इंक्रीज वीनस प्रेशर. यूट्रस ग्रो कर रहा है, वीनस प्रेशर ज्यादा हो रहा है, लाइक बहुत प्रेशर हो रहा है एब्डोमेन में, एब्डोमिनल, तो उसकी वजह से फीमेल्स को हेमरॉइड्स भी हो सकते हैं. Gum tissue may become swollen and easily bleed because of increased level of estrogen. Gum tissues जो भी है, teeth के gum, वो एकदम swollen हो जाएंगे और easily bleed कर सकते हैं. But what is the rationale? क्यों होता है ये? Online students, Increase level level of of Increase estrogen. level estrogen. increase level of estrogen. इसमें प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, द रोल इज ऑफ estrogen. So ये याद रखना है कि कॉन्स्टिपेशन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है. वो तो इजीली याद रहेगा कि एब्डोमेन पर प्रेशर हो रहा है तो हो रहा है, बट हार्मोनल याद रखना है कि कॉन्स्टिपेशन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, फ्लैचुलेंस हार्टबर्न प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, गम टिश्यू स्वोलन और इजीली ब्लीड होंगे ड्यू टू estrogen. टाइलिज्म, व्हाट इज दैट? टाइलिज्म मींस excessive secretion of saliva. हाँ, अंदर लिखा है तो टाइलिज्म, that is excessive secretion of saliva, may occur because of increasing level of estrogen. टाइलिज्म क्यों होता है? because estrogen बढ़ गया है, इसीलिए. Understood? Next is renal system. Renal system में क्या changes होंगे? So frequency of urination increased by 25% in first and third trimester. जो फ्रीक्वेंसी, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में इंक्रीज हो जाती है. व्हाई नॉट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर? चलो ये पूरा पॉइंट कंप्लीट करते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीजेस बाय 25% इन फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, नॉट सेकेंड ट्राइमेस्टर, because of increased bladder sensitivity and pressure of enlarging uterus on the bladder.
सो सेकेंड में छोटा होता है यूट्रस, तो फर्स्ट में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, सेकेंड में नहीं हो रही और थर्ड में हो रही है. आंसर इज गिवन इन दिस पॉइंट. ફર્સ્ટમાં બ્લેડર સેન્સિટિવિટી થાય અને થર્ડ ની અંદર એનલાર્જ થાય એટલે યુટ્રસ. फर्स्ट अभी फीमेल को कभी आदत ही नहीं थी लाइक ऐसा ब्लैडर यूट्रस एनलार्ज होगा, पता ही नहीं था. फर्स्ट टाइम ऐसे वो प्रेग्नेंट हो गई है, सो ब्लैडर के लिए दिस इज समथिंग न्यू कि ये क्या हो गया. सो ब्लैडर सेंसिटिव हो गया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इसीलिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई. सेकेंड ट्राइमेस्टर को अब ब्लैडर को पता चल गया है कि हाँ ये है ही, वो अडेप्ट हो गया है. सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बट थर्ड ट्राइमेस्टर में वो एडेप्टेड तो है, बट फिर भी यूट्रस इतना बड़ा हो गया है कि वो अडेप्टेड है, फिर भी उस पर प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है. सो दैट्स व्हाई फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, नॉट सेकेंड. अंडरस्टूड द रीजन? યસ. ओके. डिक्रीज ब्लैडर टोन में अकर, ब्लैडर का टोन डिक्रीज हो जाएगा, उसका मतलब क्या? ब्लैडर टोन डिक्रीज हो जाना मतलब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा. वी नो कि यूरिन को बाहर निकालने के लिए ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है. सो ब्लैडर टोन डिक्रीज हो जाएगा तो ब्लैडर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होगा या अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा? दैट इज ओके, बट आई एम टॉकिंग अबाउट टोन. ब्लैडर टोन डिक्रीज हो गया है तो कॉन्ट्रेक्शन कैसा होगा ब्लैडर का? अच्छा होगा या डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इन शॉर्ट? Increase. कैपेसिटी नहीं, कॉन्ट्रैक्शन. दिस इज द ब्लैडर, उसकी टोन डिक्रीज हो गई है. सो वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा या फिर ऐसे डायलेटेड रहेगा? कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएंगे या कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा? Decrease. ब्लैडर टोन, यस ओके चलो. ब्लैडर टोन डिक्रीज होना हो जाना मतलब वो मसल्स है वो अभी वीक हो गए, तो इजीली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे. अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा? ડિક્રીઝ થશે. कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे तो क्या होगा? अंदर यूरिन स्टोर ही रहेगा. हाँ, इनकॉन्टिनेंस नहीं, यूरिन रिटेंशन बोलते हैं उसको. सो ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ जाती है बिकॉज ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं अच्छे से. प्रेशर की वजह से वो यूरिन निकल जाता है, दैट इज अनदर थिंग, बट उसकी कैपेसिटी नॉर्मली बढ़ गई है बिकॉज उसकी टोन डिक्रीज हो गई है. एंड ब्लैडर टोन डिक्रीज क्यों होता है? बिकॉज इंक्रीजिंग प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन लेवल. सो ब्लैडर टोन डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से ब्लैडर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है. नो डाउट उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, बट यूट्रस इज द विलन, उसको होल्ड ही नहीं करने देता यूरिन, बट उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. ये प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो रहा था और उसकी टोन डिक्रीज हो गई थी, तो ब्लैडर कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है. बट फिर भी यूट्रस है उतना प्रेशर दे रहा है कि उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, फिर भी वो यूरिन होल्ड नहीं कर पाता और फ्रीक्वेंटली उसको यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है. बट इतना याद रखना है कि ब्लैडर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. रीनल थ्रेशहोल्ड फॉर ग्लूकोज मे बी रिड्यूस्ड. रीनल थ्रेशहोल्ड ग्लूकोज का कम हो जाता है. व्हाट इज दैट? ये क्या है? क्या समझ आया इसमें से? रीनल थ्रेशोल्ड ग्लूकोज का कम हो जाता है मतलब? ગ્લુકોઝ મેટાબોલાઇઝ નહીં થાય. नो, मेटाबॉलिज्म किडनी का काम ही नहीं है. मेटाबॉलिज्म कौन करता है? सब चीजें liver, किडनी का काम तो सिर्फ एक्सक्रीशन का ही है. सो इसका क्या मतलब हुआ? एनी रैंडम गैसेस? जी मीन्स ग्लूकोज સુગર એક્સક્રિએટ નહીં કરી શકે. or excrete, डिक्रीज થઈ જશે. क्या डिक्रीज हो जाएगा? शुगर एक्सक्रीशन इन यूरिन. સુગર આવશે અંદર મે બી યુરિનમાં. ओके. इन एन हेल्दी इंडिविजुअल, ये प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल होता है, उसके यूरिन में अगर उसको डायबिटीज नहीं है तो उसके यूरिन में शुगर आएगा, ग्लूकोज आएगा? उसके यूरिन में ग्लूकोज होगा? नो. નો. नो.
नहीं होता है, ग्लूकोज नहीं होता है। उसका मतलब कि रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज अच्छा है, इम्प्रूव्ड है। उसका मतलब क्या कि जो किडनीज है, जो भी ग्लूकोज है वो रीएब्सॉर्ब करके बॉडी में ही रख रही है, बाहर नहीं भेज रही, बिकॉज ऑलरेडी बॉडी में नॉर्मल अमाउंट है, बहुत ज्यादा होगा सच एज इन डायबिटीज, तो ब्लड में इतना ग्लूकोज होता है कि किडनी क्या करती है, उसको निकाल देती है एक्स्ट्रा, और वो रखती नहीं है। बट जो हेल्दी इंडिविजुअल्स है उसमें रीनल ग्लूकोज थ्रेशोल्ड अच्छा होता है, वो रीएब्सॉर्ब कर लेता है बॉडी में ही, कि उसको बाहर नहीं निकालना है। बट प्रेगनेंसी में क्या होगा, उसका ग्लूकोज नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज क्या है? 70 to 90. 72, 110. 110 और 120। सो दिस इज द नॉर्मल। सो वो फीमेल का ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल है, चलो 100 है, फिर भी यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है। सो रीनल थ्रेशोल्ड, जो ग्लूकोज रीएब्सॉर्प्शन करने की कैपेसिटी थी, वो कम हो गई है एंड यूरिन में ग्लूकोज लीक हो रहा है। सो दैट इज रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज डिक्रीजेस, मतलब ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, यूरिन में निकल जा रहा है। दो उसका ब्लड ग्लूकोज कम है, ज्यादा होता है तो निकलता है, दैट इज ओके, अंडरस्टैंडेबल कि ब्लड में ज्यादा है सो किडनीज एक्स्ट्रा बाहर निकाल रही है। बट ब्लड में नॉर्मल है, कम है, नॉर्मल है, फिर भी किडनीज में से बाहर निकल जा रहा है, बिकॉज उसका थ्रेशोल्ड कम हो गया है। अंडरस्टूड? Yes. ma'am. ओके, सो दिस हैपेंस इन प्रेगनेंसी। ओके, सो कितना है अभी बाकी? ओके, सो मच। सो लेट्स कीप, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन, आज हमने क्या देखा। So we have started new chapter, that is prenatal period. Prenatal period means डिलीवरी से पहले तक का पीरियड, जो पूरा प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो। द प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट्स आर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। उसमें हमने जेस्टेशन देखा। जेस्टेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से लेके डिलीवरी तक का जो भी पीरियड है उसको हम जेस्टेशन बोलते हैं। इन गायनेकोलॉजी 20 to 80 डेज का होता है। देन नेगल्स नेगलस रूल हमने देखा, ईडीडी एस्टिमेट करने का। व्हाट वाज दैट? कैसे कैलकुलेट करोगे ईडीडी? कौन से दिन से कैलकुलेट करोगे? First day. फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी, वहां से कैलकुलेट करना है। उसमें 9 मंथ ऐड करोगे एंड देन 7 डेज, या फिर 7 डेज ऐड करोगे एंड लास्ट में 9 मंथ्स। दोनों कर सकते हो, बट यू शुड नो कि कैसे कैलकुलेट करना है। देन ग्रेविडिटी एंड पैरिटी देखा। ग्रेविडिटी मतलब कितनी बार वो प्रेग्नेंट है। ओके, सो नली ग्रेविडा मतलब क्या? शी हैज बीन नॉट प्रेग्नेंट, अभी तक, आज तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। प्राइमी ग्रेविडा मीन्स फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल आंसर। मल्टी ग्रेविडा मीन्स एक या બે થી વધારે. 2 बार प्रेग्नेंट होगी तो उसको मल्टी ग्रेविडा बोलेंगे। more than 2 times. No, ma'am. मोर देन 2 इट इज मल्टी ग्रेविडा। सेकेंड प्रेगनेंसी में उसको मल्टी ग्रेविडा नहीं बोलेंगे, 2 से ज्यादा है तो इट इज मल्टी ग्रेविडा। देन पैरिटी मतलब क्या? Number of births. नंबर ऑफ डिलीवरी। अगर ट्विंस डिलीवर हुए हैं तो आप पैरिटी 2 लिखोगे? No. No. नो, 1। 20 वीक से 20 वीक पर हुई है डिलीवरी तो पैरा Para 1. 20 वीक पर No. 0 होगा। 20 और 20 वीक से कम होता है तो उसको अबॉर्शन बोलते हैं। 20 वीक के बाद अगर डिलीवरी होती है तब उसको पैरा में कंसीडर करोगे। सो 20 वीक से कम है तो दैट इज कंसीडर एज अबॉर्शन। ओके, सो और अगर फीटस डेड बॉर्न हुआ है, स्टिल बर्थ हुआ है, तो पैरिटी क्या होगी? 1. 1 होगी। यस, ट्विंस से एक स्टिल बर्थ है और एक लाइव है तो पैरिटी क्या हुई? 1. 1 ही होगी। यस, सो हमें फीटस नहीं देखना है, कितने लाइव है कितने वो है वो भी नहीं देखना है। सो नली पैरा मतलब क्या? Never been pregnant. नेवर बीन प्रेग्नेंट। Nully gravity. જે 20 વીક સુધી डिलीवरी પહોંચે જ नहीं हुई નથી. है, हाँ। સુધી और પહોંચી वो નથી. फीमेल को 2 बार अबॉर्शन हुआ है तो कैसे नली पैरा? उसने 2 बार डिलीवरी करवाई है,
20 वीक्स पर, 20 वीक्स से पहले 2 बार डिलीवरी करवाई है, तो उसको नली पैरा बोलोगे। Yes. Yes. हाँ, 20 वीक्स से बाद नहीं हुई है, भले 2 या 3 बार उसने 20 वीक्स से पहले डिलीवरी कराई है, फिर भी उसको नली पैरा ही बोलेंगे, बिकॉज कभी भी 20 वीक के बाद उसने डिलीवरी नहीं करवाई है। प्राइमी पैरा मतलब फर्स्ट टाइम उसकी डिलीवरी हो रही है आफ्टर 20 वीक्स। देन मल्टी पैरा मतलब यस, 2 से ज्यादा बार उसकी डिलीवरी हो रही है, बट ये भी आफ्टर 20 वीक्स। अंडरस्टूड। Yes, ma'am. नेक्स्ट हमने GTPAL स्कोर देखा था। G मीन्स ग्रेविडिटी, दैट Gravity. इज प्रेगनेंसी। T मीन्स Term births. किसको टर्म बर्थ बोलेंगे? सत्यावीस 37 1 week. 37 वीक्स के बाद की जो भी प्रेगनेंसी होती है उसको टर्म बोलते हैं। सो और मैंने T मीन्स 37 हो तो प्रीटर्म के ना 30, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। 37 को हम प्रीटर्म कंसिडर कर सकते हैं, इट इज कंसिडर एज अ प्रीटर्म, बट एग्जाम में ऐसे नहीं होंगे कि एग्जैक्टली 37 होगा। 38 या 36 से ही स्टार्ट करेंगे, एग्जैक्टली 37 नहीं होता है। अगर है तो उसको प्रीटर्म कंसिडर करना है। ओके, प्रीटर्म मीन्स 37 वीक्स 30 पहले डिलीवरी। हाँ, सो दैट इज प्रीटर्म। ए मीन्स कैसे Abortion. पता अबॉर्शन है? 20 हाँ, 20 वीक्स पहले हुई है तो। एंड एल मीन्स लिविंग चाइल्ड। Living लिविंग children. चाइल्ड, करंटली कितने जिंदा है वो। सो ये जब भी आप एल देखते हो तो ये ध्यान में रखना है कि अगर ट्वींस है, उस अगर क्वेश्चन में दिया कि एक की डेथ हो गई है, सो आप एक ही कंसिडर करोगे। सो नंबर ऑफ फीटस जी पर, टी पर, पी पर, ए पर और पैरिटी पर अफेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ लिविंग चाइल्ड में। फॉर एग्जाम्पल फीमेल को ट्वींस है तो GB1 कहलाएगा, टर्म बर्थ हुए हैं तो भी TB1 होगा, प्री टर्म हुआ है दोनों का बर्थ तो भी P1 ही कहलाएगा, अगर अबॉर्शन हो गया है सो भी A1 ही बोलेगा। दो दे आर ट्विंस, 2 नंबर फीटस के थे तब भी उसको 1 ही लिखेंगे। पैरिटी भी 1 ही होगी, अगर 2 है फिर भी 1 लिखेंगे, बट एल में 2 लिख सकते हैं आप, बिकॉज लिविंग चाइल्ड 1 है। बट अगर ऐसा बोला है कि एक लाइव बोर्न हुआ था, एक स्टील बर्थ हुआ था, तो एल भी 1 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ फीटस आपको GTPA एंड पैरिटी किसी पर भी नंबर ऑफ फीटस अफेक्ट नहीं करता। अंडरस्टूड। Yes, ma'am. हाँ, देन प्रेगनेंसी साइंस देखे थे, प्रिजम्पटिव साइंस, प्रोबेबल साइंस एंड पॉजिटिव साइंस। प्रिजम्पटिव साइंस कौन से है? लिस्ट इट आउट। weakening, Nausea, vomiting. breast Okay. infection. ओके, एमेनोरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, एरियोला पिगमेंटेशन इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगी ब्रेस्ट की, एरियोला की, फीलिंग ऑफ फुलनेस होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, क्विकनिंग मदर को फील होगा। नॉर्मली 16 से 20 वीक पर होता है, बट स्टिल एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट, कुछ लोगों को ज्यादा जल्दी हो जाएगा, कुछ लोगों को बाद होगा। फटीग होगा एंड स्किन पिगमेंटेशन में चेंजेस होंगे, लाइक लीनिया नाइग्रा एंड मिलेस्मा और एज क्लोएज्मा, दोनों सेम है। सो दिस आर द प्रिजम्पटिव साइन। प्रोबेबल साइन कौन सी है? सो जो भी जितने भी साइंस है वो हम प्रोबेबल साइंस में कंसिडर करेंगे। यूट्रस एनलार्ज होना, हेगर्स साइन, गुडेल साइन, चैडविक साइन, बेलॉटमेंट, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन एंड यूपीटी पॉजिटिव होगा, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। सो दिस आर कंसिडर एज अ प्रोबेबल साइन। आपको याद रखना पड़ेगा व्हाट इज हैगर्स, गुडेल्स, चैडविक साइन, ये सब क्या है वो आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव साइन मतलब डायग्नोस किया है कंप्लीटली, नाउ ये तो कंफर्म ही है, उसमें अभी मिस्टेक नहीं हो सकती। सो FHR आपने सुने हैं डॉपलर से या फिर फीटोस्कोप से। डॉपलर से 10 to 12 वीक्स या क्वेश्चन में 8 वीक हो तो वो, एंड फीटोस्कोप से 20 वीक्स पर आपने सुने हैं। एक्टिव फीटल मोमेंट अभी एग्जामिनर भी फील कर पा रहा है, एंड आपने पूरा फीटस की आउटलाइन देखी है बाय USG और रेडियोग्राफी। सो दिस आर द पॉजिटिव साइंस, दिस इज द टेबल, कि आपको याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम में पूछते हैं वो लोग कि इसमें से कौन सी प्रिजम्पटिव है, प्रोबेबल है या पॉजिटिव है। सो तीनों अलग से याद रखनी पड़ेगी। देन फंडल हाइट हमने देखी, कैसे मेजर करते हैं, तो सिम्फाइसिस प्यूबिस पर स्टार्टिंग पॉइंट रख के धीरे धीरे उसको स्ट्रेच करेंगे जब तक फंडल हाइट फील नहीं हो जाती। जब भी लेते हो फंडल हाइट, मेक श्योर कि आपने मदर का ब्लैडर एम्प्टी करवा दिया हो। एंड नॉर्मली सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में उसकी फंडल हाइट जितनी होती है, कितनी होगी, नियर टू द जेस्टेशनल एज, उसमें 1 या 2 ज्यादा कम होगी। सो उससे आप
अगर ऐसा बोला है कि मदर 20 वीक प्रेग्नेंट है तो उसकी फंडल हाइट 20 के आसपास ही होगी, 22, 20, 18 उसके आसपास ही होगी। 16 वीक पर कितनी होती है? दे विल नॉट आस्क यू दिस क्वेश्चन, थियोरिटिकल क्वेश्चन नहीं होते, बट यू शुड नो कि 16 वीक पर अम्बिलिकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में होगी, 20 to 20 वीक्स पर अम्बिलिकस पर होगी, एंड 36 वीक पर पूरी जिफॉइड प्रोसेस तक होगी। 36 वीक के बाद कम होना स्टार्ट हो जाती है, क्यों? बिकॉज फीटस अभी डिसेंट हो रहा है, पेल्विस में एंटर हो गया है। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? Assessing fundal height. Monitor the client closely. Supine position. सुपाइन हाइपोटेंशन के लिए Hypotension. कब मॉनिटर करोगे क्लोजली फॉर सुपाइन हाइपोटेंशन? आफ्टर 20 वीक या 20 weeks of the yes. क्यों सुपाइन हाइपोटेंशन होता है? इंफीरियर वेना के बाद सिंड्रोम की वजह से यूट्रस एनलार्ज है, तो प्रेशर की वजह से सुपाइन हाइपोटेंशन होता है, तो आपको क्लोजली मॉनिटर करना होगा। देन हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखे। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? कल्चरल बिलीफ। जब भी आप प्रेग्नेंट फीमेल की केयर कर रहे हो तो इट इज सो इम्पोर्टेंट सारे पेशेंट के लिए, आप उसकी कल्चरल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल सारी बिलीफ, उसकी पर्सनल बिलीफ सब उसको ध्यान में रख के ही केयर करना है इन एंक्लेक्स। ये चीज आपको याद ही रखनी है। कार्डियोवेस्क्युलर सिस्टम में क्या होता है? नॉर्मली पूरा सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल अनीमिया होता है, क्यों होता है? द रैशनल इज પ્લાઝમા ઇન્ક્રીઝ થાય એટલે બ્લડ LRBC ડાયલ્યુટ થઈ જાય, आरबीसी भी तो इंक्रीज होता है। और प्लाज्मा ज्यादा होता है। plasma हाँ increase. यस, आरबीसी भी इंक्रीज होता है, प्लाज्मा भी इंक्रीज होता है, बट प्लाज्मा आरबीसी से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो आरबीसी डाइल्यूट हो जाते हैं, उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। फीमेल को आयरन रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, हाइट की साइज इंक्रीज होगी, उसका वर्कलोड इंक्रीज होगा बाय द प्रेशर ऑफ यूट्रस। वो थोड़ा अपवर्ड और लेफ्ट तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, उतना ज्यादा भी नहीं, माइनर होता है, पर जैसे ही बर्थ हो जाएगा फीटस का, वो चाइल्ड बर्थ हो जाएगा, फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा। और ब्लड सर्कुलेटिंग वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, लाइक सोडियम वाटर रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। रेस्पिरेटरी चेंजेस में क्या होगा? सो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, अभी फीटस को भी चाहिए ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, डायफ्राम ऊपर चला जाएगा, एलिवेट हो जाएगा ड्यू टू एनलार्ज यूट्रस। हार्मोनल चेंजेस ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के जो हो रहे हैं उसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अफेक्ट होता है, एंड फीमेल शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एक्सपीरियंस करती है, थोड़ा चलने के बाद भी, थोड़ा काम करने के बाद भी वो ऐसे थक जाती है, उसकी सांस फूल जाती है। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? हार्ट रेट क्या होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? 10 to हार्ट रेट क्या होगी? 10 to 15 beats per minute. 10 to 15 इंक्रीज होगी। व्हाट अबाउट रेस्पिरेटरी रेट? Unchanged नहीं है. Change slightly increase. yes, कुछ लोगों में अनचेंज रहता है, नहीं चेंज होता है, या फिर इंक्रीज होता है, वो डिक्रीज नहीं होता है। व्हाट अबाउट ब्लड प्रेशर? You are wrong. What about blood pressure? सेकंड ट्रांस सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्लड प्रेशर Decrease डिक्रीज होगा। होगा, नॉट इंक्रीज। थर्ड ट्राइमेस्टर में इंक्रीज होगा, बट कितना होगा? प्री प्रेगनेंसी में जितना था, ऐसा नॉर्मल रेंज बोला हो। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर? लेस देन 120 by 120 by 80. 80. दिस इज द नॉर्मल, बट वो फीमेल का ब्लड प्रेशर इतना ही रहता है, 130 by 90। सो थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लड प्रेशर अगर 130 by 90 है तो उसको आप हाइपरटेंशन बोलोगे? नहीं, बिकॉज वो फीमेल का प्री प्रेगनेंसी स्टेट में ही उतना रहता था, सो दैट्स व्हाई नॉर्मली उतना ही रहना चाहिए। अगर वो बढ़ जाता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? जब ब्लड प्रेशर सीवियरली हाई होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, द कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्शिया, सो मेक श्योर कि इंक्रीज होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, बट उतना नहीं जितना उसको प्री प्रेग्नेंट स्टेट में था उतना रहेगा। उसको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, उसको प्री प्रेग्नेंट स्टेट में ही 140 इतना रहता था, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में उतना ही रहेगा, और जिसको ऑलरेडी हाइपरटेंशन होता है उसको प्री एक्लेम्शिया के रिस्क ज्यादा होंगे। तो ये चीज याद रखनी है। जीआई सिस्टम में हमने देखा नोजिया वॉमिटिंग होता है, क्यों होता है? द रीजन इज
HCG हार्मोन की वजह से, नॉट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एंड नॉर्मली 3 महीने के बाद वो सबसाइड हो जाएगा। एपेटाइट कैसी होगी? एपेटाइट कैसी होगी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Increase. Increase. अर्ली प्रेगनेंसी में इंक्रीज होगी, लेटर ऑन Decrease. क्यों? Decrease. The reason is rational is Gastric motility. Motility. कम हो गई है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ यूट्रस। यस। टेस्ट एंड स्मेल ऑल्ट्रेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? हार्मोनल रीजन। Progesterone. Increase in progesterone. यस, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। एंड दूसरा रीजन जो यूट्रस प्रेशर कर रहा है उसकी वजह से। फ्लैक्चुलस एंड हार्टबर्न होता है। द हार्मोनल रीजन इज Increase in Progesterone. प्रोजेस्टेरॉन की Decrease. वजह से है। एंड दूसरा रीजन कि यूट्रस प्रेशर कर रहा है, सो उसकी वजह से हो रहा है। हेमरॉइड्स हो सकते हैं बिकॉज वीनस प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। गम टिश्यू एकदम स्वोलन हो जाएंगे, फूल जाएंगे एंड इजीली ब्लीड हो सकेंगे। द रीजन इज Increase level of estrogen. Increase level of इंक्रीज estrogen. ईस्ट्रोजन। यस। टाइलिज्म होता है। क्यों होता है? Excessive secretion of saliva. क्यों होता है? Increase level of Increase Increase estrogen. level of Estrogen की वजह। estrogen. हाँ। देन हमने रीनल सिस्टम देखा। यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? Increase. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में इंक्रीज होगी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं होती उतनी ज्यादा यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। क्यों? द रीजन इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई है एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए। ब्लैडर टोन कैसा हो जाता है प्रेगनेंसी में? Decrease. डिक्रीज हो जाता है Decrease. ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। ब्लैडर टोन डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, बट स्टिल वो होल्ड नहीं कर पाता ड्यू टू द प्रेशर ऑफ यूट्रस। बट ब्लैडर कैपेसिटी गेट्स इंक्रीजेस इन प्रेगनेंसी ड्यू टू द प्रोजेस्टेरॉन लेवल, इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन लेवल। रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज क्या होगा? Reduce. क्या उसका मतलब क्या? रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज रिड्यूस, उसका मतलब क्या? Glucose reabsorb नहीं था. हाँ, तो क्या होगा? यूरिन में ग्लूकोज आएगा। दो इट इज नॉर्मल इन ब्लड, फिर भी यूरिन में लीक हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन कम हो गया है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके। एनी डाउट इन दिस चैप्टर? मैडम तो जेस्टेशनल डायबिटीज થાય તો એ કેવી રીતે? जेस्टेशनल डायबिटीज होगा तो उसका मतलब तो ऑलरेडी ब्लड में ज्यादा है, तो उसमें तो यूरिन में आएगा ही। बट પણ फीमेल को પહેલા ના जेस्टेशन, હોય ને. પહેલા ના હોય, सॉरी, ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી આવે તો. हाँ तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही हो रहा है। बट ये फीमेल रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज डिक्रीज मतलब उसका ब्लड शुगर तो नॉर्मल है, फिर भी यूरिन में आ रहा है। और जेस्टेशनल डायबिटीज में तो प्रेगनेंसी में उसका ब्लड शुगर भी एलिवेटेड है और यूरिन में आ रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट इसमें तो है ही नहीं, द फीमेल इज नॉट, डज नॉट हैव जीडीएम, फिर भी यूरिन में ग्लूकोज लीक होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। તો બ્લડમાં આ હોર્મોન્સ ના કારણે આવી શકે. हाँ, वो हम देखेंगे जीडीएम क्यों होता है, दैट कंडीशन वी विल स्टडी। आपको पता चलेगा कि क्यों होता है, कैसे होता है। बट अगर जीडीएम नहीं है फीमेल को, फिर भी ग्लूकोज यूरिन में आता है डायबिटीज तो आएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट नॉर्मली थ्रेशोल्ड डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नहीं होगा उसको ब्लड शुगर इतना हाई, फिर भी यूरिन में निकलेगा। एनी अदर डाउट्स? No, ma'am. Okay, so see you tomorrow at 9:20 a.m. Thank you. થેન્ક યુ. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.